السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، مہربانی ہوگی۔ اور اتنا فنی سین ہوا ہے نا میرے ساتھ، میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے یہاں سے پہلے ریکارڈ کیا ہے 2 گھنٹے کا، اور وہ پھر بعد میں چیک کیا ہے، وہ اس کی وائس ہی نہیں تھی۔ ایویں اسکرولنگ جاری ہوئی، مطلب ہوئی پڑی تھی۔ وہ ایپ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو اس کی مطلب بس اسٹارٹ میں تھوڑی سی وائس تھی، بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا ایپ کو۔ میں نے دوبارہ ڈیل کر کے نیو بنائی ہے، مطلب ڈاؤن لوڈ کیا ہے ایپ۔ اللہ، مطلب اتنا مجھے غصہ آ رہا ہے نا، کیا بتاؤں۔ چلے خیر، ناول ہے جی ہمارے پاس، لمسک سیرس قلم بھائی با فاطمہ، اور آج کی ایپیسوڈ بغیر کسی دیر کے آغاز کرتے ہیں پھر سے۔ اپنے پشت پر اچانک جلن کا احساس ہوتا زرمی سختی سے لب بھینچ گئی تھی۔ اس کے زخموں پر زاور کی مرہم رکھتی انگلیاں جلد سے ٹھنڈک اور عجیب طرح کا سکون بخشنے لگی تھی۔ نرمی سے رقص کرتے زاور کی انگلیاں اس کی نازک جان پر ایک جادو برپا کر رہی تھی۔ جلن ٹھنڈک میں بدلتی سے سکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ رو مت، کمزور نہیں ہو تم، یہ زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جانتی ہو، جب تک انسان اپنے زخموں کو خود نہیں ٹھیک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پھر چاہے روحانی ہو یا جسمانی۔ زرمش کی پچھلی گردن سے بال ہٹاتے زاور نے وہاں اپنے لب رکھی تو زرمش نے ایک زور کی سسکی لی تھی، اور پھر زرمش کے تھوڑے سے نمایاں گال پر اپنے لب رکھتے کس کے زرمش کے وجود کو خود میں پینچا تھا، پر کانوں کے لوگوں کو ہلکے سے لبوں میں دباتے کھینچا، پھر سرگوشی کی تھی، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا زرمش، بلکہ مرضی نہیں، تمہاری خوشی کے بغیر ہمارے درمیان رشتہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، بہت زیادہ۔ تمہیں اذیت یا تکلیف دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں بس تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھو اور خوش رہو۔ گڈ نائٹ۔ زرمش کے سر پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتا وہ واپس کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ ایک نظر پیچھے زاور نے گہری سانس لیتے زرمش کو دیکھا تھا، پھر آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ اس لڑکی سے نظریں چرانا یا منہ پھیرنا مشکل ترین امر تھا، لیکن ذہنی تسکین محبت کے بغیر کھوکھلے وجود کے اصول سے ملتی ہوتی تو شاید وہ اپنا حق استعمال کر لیتا، پر اسے زرمش میں وہی محبت اور رغبت، وہی خوشی چاہیے تھی جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ ایک خود سے بیزار بیگانہ وجود کبھی اسے سکون نہیں دے سکتا تھا۔ لیمپ آف کر کے لیٹے کچھ دیر گزری تھی کہ اسے زرمش کی ہچکیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بری طرح چونکا، اب تو وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، پھر وہ کیوں رو رہی تھی۔ فوراً لیمپ آن کیا اور کچھ بلند ہو کر زرمش کو دیکھا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، وہ فکر مند ہوا تھا۔ زرمش، زاور نے پکارتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چند لمحے زرمش کا وجود ساکت محسوس ہوا، لیکن پھر اچانک وہ پلٹی اور زاور کے سینے پر اپنا منہ پوری شدت سے چھپا لیا تھا۔ یہ سب اتنے اچانک ہوا کہ زاور خانزادہ خود بھی پتھر ہو گئے تھے۔ اس سے کہاں امید تھی وہ یوں اس کی باہوں میں آزمائے گی، وہ تو منتظر تھا اس کے ہاتھ جھٹکنے کا۔ زاور نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود واقعے کی دوریاں سمیٹتے اپنے بہت قریب کر لیا۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے آہستہ آہستہ اس کی بیٹ رب کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے میری ماں کون تھی؟ رونے کے درمیان وہ انتہائی کرب سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پل بھر کو چونکا، پھر لب بھینچ لیے کہ سمجھ گیا تھا اس لمحے میں بری طرح خود اذیت کا شکار ہے۔ زاور خاموش تھا، اگر آواز نکالتا تو وہ ہوش میں آ جاتی اور پھر اسے دور ہو جاتی۔ میری ماں ایک طوائف تھی۔ اس کی بات پر زاور کا اس کی پیٹھ چلتا ہاتھ رکا تھا۔ انسانی کے لیے دماغ بالکل الجھ گیا تھا۔ انہوں نے میرے غریب باپ سے محبت کی شادی کی تھی، پھر غربت برداشت نہیں ہوئی، اپنی وہ آرام دہ غلیظ زندگی یاد کر کے انہیں سب برا لگنے لگا، اور پھر وہ مجھے میرے باپ کے پاس پھینک کر وہاں کوٹھے پر چلی گئی۔ یہ کہتے اس نے ہچکیاں لیتے زاور کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی تھی، یوں جیسے اس کی حقیقت ادراک کے بعد وہ محبوب شخص اس سے دوری قائم کرتے اس کی غربت سے دور ہو جائے گا۔ جبکہ زاور بالکل خاموش تھا، اس کے ہاتھ ایک مرتبہ پھر زرمش کی کمر پر حرکت کرنے لگے تھے۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ کر گئیں؟ غربت اتنی بری تو نہیں ہوتی کہ انسان وہ نہ جانے کی وجہ سے پوچھ رہی تھی، شاید جتا رہی تھی، پر کیوں؟ اپنا آپ اس کے سامنے کھول رہی تھی، کیوں؟ کیا وہ چاہتی تھی زاور اس کے متعلق سچ جانے، یا یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ سچ جاننے کے بعد اسے اپنے ساتھ رکھے گا یا نہیں، اپنی زندگی میں جگہ دے گا یا نہیں؟ میری ستیلی ماں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس کا بیٹا مجھے چھونے کی کوشش کرتا تھا، بند آنکھیں لرزتی، بلکہ اس کی آنکھ ایک بار پھر اپنے ساتھ ہوا ایک منظر یاد کر رہی تھی، وہ سب تصور کر رہی تھی، اور کچھ ایسا ہی تصور زاور کی آنکھ میں بھی تھا۔ خون اچانک کھولنے لگا تھا، سینے میں لاوا سا پکنے لگا تھا، فراز کے ٹکڑے، اور دل کیا تھا کہ فراز کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اس سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ جب میں فیکٹری میں دھکے کھا کر اپنی محنت کی کمائی کمانے گئی تو ٹھیکیدار نے مجھ سے زبردستی کی کوشش کی۔ سب مجھے گلیز نظروں سے دیکھتے تھے،
नफ़रत होती थी इनकी नज़रों से। मेरी जो तेरी माँ कहती थी तुम तवाइफ की बेटी हो इसलिए सब तुम्हें देखते हैं, कल को तुम भी तवाइफ बनोगी। अज़ियत भरे अल्फाज सुनकर ज़ाफ़िर को ज़ब्त करना मुश्किल हो गया, जबकि इस नाज़ुक जान ने तो ये ज़िंदगी जी थी। इतने सख्त जुमले कोई कैसे किसी मासूम लड़की को कह सकता था? हाँ, इसकी बाहों में मौजूद लड़की दुनिया गलाज़त और साज़िशों को नहीं समझ सकती थी। वो मासूम थी। ज़ाफ़िर को महसूस हुआ जैसे ज़रमिश ने सूसू करे थे अपने आँसू साफ़ करने को अपने नाक उसके सीने पर रख रही थी। इस कदर गुस्से और परेशानी में भी वो इसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना न रह सका था। हाँ, वो खुद पर हल्की-सी धूल भी बर्दाश्त न करने वाला शख्स ज़रमिश की इस हरकत पर सरशारी से मुस्कुराया था। बेख्तियार झुकते आहिस्तगी से लब ज़रमिश के बालों पर रखे थे। जानते हुए मैं अल्लाह से दुआ करने लगी, मुझे कोई अमीर शहज़ादा दे दे, जो मुझे दुनिया से छुपा ले, मुझसे ढेर सारा प्यार करे। वो दुनिया के लिए वो जितना ज़ालिम हो, मेरे लिए उतना ही नरम दिल हो। वो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। मुझे दाल चटनी नहीं पसंद थी। मैं दुआ करती थी, जब भी कुछ खाना चाहूँ मेरा शहज़ादा मुझे ला दे। वो मुझे पहनने को नए कपड़े दिलाए, मुझे सालों किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। मेरा बचपन ऐसे गुज़रा है, हर चीज़ के लिए तरस-तरस कर मैं किसी चीज़ की तमन्ना करती थी, वो चीज़ तो नहीं मिलती थी, लेकिन इस चीज़ की तमन्ना खत्म हो जाती थी। मैं आम सी लड़की थी और आम लड़कियों की तरह सिंड्रेला बनने की ख्वाहिशात थी, पर यहाँ हर सिंड्रेला के लिए शहज़ादा नहीं आता, ये सोचकर मैं उदास हो जाती थी। फिर मुझसे एक लड़का टकराया और वो मुझसे मोहब्बत का इज़हार करने लगा। वो मेरा नसीब का शहज़ादा नहीं था। वो लड़का वैसा नहीं था जैसे मैंने माँगा था, पर इस वक़्त वो मेरी ज़रूरत बन गया। मैं अपने घर में सौतेली माँ के दिन-रात जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद और इसके बेटे की गलीज़-तरीन इरादों से निजात के लिए इसका साथ कबूल कर रही थी। मैंने अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरत के तहत मार दिया था और एक रात उसके साथ घर से भाग गई, वरना मेरी शादी मेरी जान से तेरे भाई से हो जाती। मांसी की राज इस पर खोलते हुए इसका लबो लहजा लर्ज रहा था। साहिब लब पीछे से सुने गया था। वो जानता था भी इब्रार की मुतल्लिक़ बात कर रही है। इसे तो जसूस हुआ, वो आगे मज़ीद जानना चाहता था, इसे सुनना चाहता था, वो आज सब कुछ जान लेना चाहता था। फिर वो जिसको मैं रहबर समझती थी, वो रहज़न निकला और मुझे दबाई रसवाई भरी खाई में धकेल गया। वो धोखा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा। वो शख्स मुझे घोड़े पर बेच गया। ये कहते वक़्त किस कदर कर्ब से गुज़री थी, उसका अंदाज़ा ज़ाहिर को हो रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी अज़ियत बर्दाश्त नहीं की ज़ाहिर, जितनी अज़ियत मैंने इन दिनों बर्दाश्त की थी। आप जानते हो वहाँ की औरतों की नज़रें भी गलीज़ थीं। वो अचानक पीछे होते चेहरा बुलंद कर गई थी। ज़ाहिर की आँखों में देखा तो रोने के बाद उसकी आँखें सुर्ख हो रही थी। ज़ाहिर को लगा मज़ीद उसे सुनेगा तो अपना आपा खो देगा। वो शायद आज कम से कम इब्रार का ही कत्ल या आज कम से कम इब्रार का ही कत्ल कर डालेगा। दिल क्या सारी दुनिया को आग लगाती उस लड़की को जो अब इसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। इसे अपने अंदर इस तरह छुपा ले कि किसी को खबर भी ना हो कि वो कभी इस दुनिया में थी भी। बेख्तियारी में झुकते ज़ाफ़िर ने इसकी बरसती आँखों पर अपनी लप रखते इस पर इसको एतबार सौंप दिया था। बारी-बारी चूम कर वो पीछे हुआ तो ज़रमीश दोबारा आँखें खोलकर इसे देख रही थी। शायद वो इसकी आँखों में अपने लिए कोई गुस्सा या हक़ारत भरा तासुर ढूँढ रही थी, जिसे खोजने पर भी न मिला था। ज़रमीश की आँखें अब भी तकलीफ़ से भरी हुई थी। चंद लम्हे की खामोशी के बाद फिर बोली थी, इनकी नज़रें मुझे नोचती थीं। आपने मेरे वजूद पर ज़ख्म देखे हैं ना? वो ज़ख्म मुझे अज़ियत नहीं देते, पर वो नज़रें मुझे अभी अपने वजूद पर चुभती हैं। लगता है अभी हर कोई मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है। बाहर जाती हूँ तो कोई मुझे देखता है तो लगता है मैं बेलिबास खड़ी हूँ। मुझे छुपा लें प्लीज़, या मुझे मारकर दफ़ना दें। वो रोते आँखें मीच की तो ज़ावेर ने सख्ती से खुद में बींच लिया था। ज़रमीश को कई लम्हों के लिए लगा कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएँगी, पर ज़ावेर का ऐसे यूँ जकड़ना इसे शिद्दत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला गया था। कुछ लम्हे खामोशी के नज़र हुए थे। ज़ावेर समझा शायद वो सो गई है, इसलिए पकड़ ढीली करते इसकी भीड़ सहलाई थी। फिर जानते हैं मैंने इस गंदी जगह पर एक शहज़ादा देखा, बिल्कुल वैसा शहज़ादा जैसे मैं अल्लाह से माँगती थी। वो खूबसूरत था, वज़ाह से भरपूर, किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। पर इस वक़्त वो इस रूप में मेरे सामने आया कि मुझे इस शहज़ादे से शदीद खौफ़ महसूस हुआ था। वो शहज़ादा मुझे नोचने को वहाँ आया था। इसने मेरा एक रात के लिए सौदा किया था। मुझे इस शहज़ादे से घिन आने लगी थी। मुझे इस समेत दुनिया के हर शहज़ादों से नफ़रत होने लगी थी। अब मेरे दिल में किसी भी शहज़ादे की तमन्ना बाकी ना रही थी। फिर वो मुझे अपने अल्फ़ाज़ से बेआबरू करता, अपने कातिल जुमलों से मेरी इज़्ज़त और नस्वानियत की धज्जियाँ बिखेरता, मुझे थप्पड़ मारकर एक नई जहन्नुम में फेंक गया था कि मुझे उसका धुतकार कर जाना मेरे लिए अज़ियत का एक नया बाप साबित हुआ था। मुझ पर इतना तशद्दुद किया गया, जहाँ मेरे ज़ख्मों को नमक मिर्च लगाकर मज़ीद किसी मुजरिम के साथ भी वो सलूक नहीं होता, वैसे मुझे अज़ियत दी गई। शायद और इस तरह मेरे साथ हुआ कि अज़ियत दी गई। शायद किसी मुजरिम के साथ भी वो सलूक नहीं होता, वैसे मेरे साथ हुआ कि दरिंदगी की हर हाथ
पार कर दी गई। वो आप से ज़ावर खाना था। मुझे खुद से अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी, पर मैं हारी नहीं थी। मैंने खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि खुदकुशी की कोशिश तो वो करता है ना, जिसके पास अल्लाह नहीं होता। पर मेरे पास तो अल्लाह है ना, मेरी मददगार भी। मैंने सब्र किया और फिर एक दिन बरामदे चेल मुझे खरीद लिया। इसने मेरी ज़िंदगी की कीमत एक रात लगाई थी। इसने मुझे ज़हनी टॉर्चर किया, एक नए खौफ में मुब्तला किया, और आज़ादी की एवज़ में अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी से नहीं दे सकती थी। मैंने बरामदे शेर को ज़ख्मी कर दिया और वहाँ से फ़ैट हो गई, शर्मिश आँखें मूंद चुकी थी। जबकि ज़ावर ने भी अफ़सोस से आँखें बंद की थी। इसीलिए वो नहीं था बरहान इससे ऐसा सलूक करेगा। फिर मैं वहाँ से भागकर अपने मोहल्ले पहुँची, वहाँ दोस्त के घर बना ली। जब ये बात मेरी सलीमा को मालूम हुई, तो इसने मेरी हर जगह रुसवाई की, मुझे बदनाम कर दिया। फिर मेरी ज़ात पर एहसान करते मुझे बहू बनाने का सोचा। मैं बहुत रोई, पर खामोश रही थी कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। पर मेरी दोस्त की अम्मी ने मेरा निकाह अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया। तो शादीशुदा था और इसकी बेटी भी थी। मैं डर गई थी अपनी इस आजमाइश से। ये सोच डरा रही थी कि जब इसे पता चलेगा कि घर से भाग कर चुकी हूँ, मैं कोठे पर रह चुकी हूँ, तो वो इस वक्त मुझे तलाक दे देगा। लेकिन फिर ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया और मेरा निकाह आपसे हो गया। आपको पहले से मालूम है, तो मैं कोठे पर रह चुकी हूँ, पर पहले पल में डर गई थी कि अब आप मुझे तलाक दे दोगे और वापस इसी कोठे पर फेंक आओगे, या मुझे रौंद कर अपना मतलब पूरा करके मार के कहीं फेंक दोगे। मैंने ये सोचकर आपसे दूर भागने की बहुत कोशिश की, पर आपने भागने नहीं दिया। पर मेरा खुदा गवाह है, मैंने किसी और के लिए नहीं भागी थी। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं पाकदामन हूँ, मेरा अल्लाह शाहिद है। मेरे हालात का कि मैं बेबस थी, पर मैंने बेबसी में भी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया। जो लड़की इतने सख्त हालात में अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं कर सकती, वो आपके निकाह में होते हुए कैसे अपनी इज़्ज़त दाँव पर लगा सकती है। ज़ाफ़िर के सीने से अपना चेहरा रगड़ते वो नमी में सर हिलाते। वो खामोश हो चुकी थी, सिर्फ़ कमरे में सिसकियाँ गूंज रही थी। जब कमरे में ज़ाफ़िर की आवाज़ गूंजी थी, जिसके साथ तुम भागी थी, वही इब्रार था ना? ज़रमिश की सांसें अटकी थी। बेख्तियार सर उठाते साकित नज़रों से ज़ाफ़िर को देखा था। ज़ाफ़िर इसे देख रहा था। इतना अनजान नहीं हो तुमसे जितना तुम समझती हो मुझे, और अपने किरदार की गवाही मुझे मत दो। शर्मी ज़ावियर खानज़ादा, अगर तुम्हारे किरदार में खोट होता तो जितनी ऊंची मनसब पर तुम बैठी हो, इस वक्त वहाँ हरगिज़ मौजूद ना होती। तुम पता नहीं क्यों बहुत खास हो मेरे लिए। सच कहूँ तो बंदा बशर हूँ। जब पहली बार कोठी पर तुम्हारा बेपनाह हुस्न देखा था, तो थोड़ा बहुत बहक गया था। दिल में अल्लाह से कहा था कि ऐसा हुस्न मेरे नसीब में लिख दे। फिर जब तुमने मुझे दुत्कारा तो और दुत्कारा तो और रश्क हुआ, और गुस्सा आया कि ऐसा हुस्न इस पर आज़ाद इज़्ज़त के लिए लड़ना। सोचा था कौन होगा जिसके नसीब में तुम होगी। फिर हुस्न के साथ तुम्हारी खुशबू और लम्स का जादू। ज़रमिश की फ़्राक से सिरकता ज़ाफ़िर का हाथ अब ज़रमिश की कमर और उसके पैर पर रक़्स कर रहा था। इसका ठंडा लम्स महसूस करते ज़मीज़ की सांस अटकी थी। फिर उस रात के बाद से मैं कभी सुकून से सो नहीं पाया था। बहुत बुरी तरह मेरे दिल और दिमाग पर सवार हो गई थी तुम। हर वक़्त तुम्हारा ख़्याल आता और मुझे बेकरार कर देता। तुमसे होने वाली 1-2 इत्तेफ़ाक़ी मुलाकातें भी मेरा चैन और सुकून सब बर्बाद करके ले गई थी। फिर तुम्हारी सोच से निजात के लिए मैंने दूसरी शादी की और दूसरी बीवी तुम ही निकली। है ना अजीब और हसीन इत्तेफ़ाक़, या फिर मेरा नसीब जिसमें तुम्हें मेरी ज़िंदगी बनाकर, मेरे वजूद का एक हिस्सा बनाकर लिख दिया गया था। दिलकशी से मुस्कुराते ज़रमिश की आंखों में देखा तो ज़रमिश फ़ौरन नज़र झुका की थी। लेकिन फिर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था। तुम घर से भाग गई और न चाहने के बावजूद मैंने तुम पर हाथ उठाया। गहरी नज़रों से ज़रमिश को देखता हुआ बोल रहा था। जब एक पल के लिए ज़रमिश ने नज़रें उठाई, पर ज़ाविर के लहजे में ऐसी तपिश थी कि वह नज़रें फ़ौरन झुका गई थी। लेकिन होश तब उड़े जब वो करवट बदलता अचानक इस पर हावी होता। ज़रमिश सारी बातें भूलकर हवास भागता सी इसे देखने लगी थी। सारी बातें एक तरफ ज़रमिश खानज़ादा, पर क्या तुम्हें मालूम है तुम कितनी खूबसूरत हो? ज़ाविर ने नहायत संजीदगी से पूछा तो ज़रमिश नफ़े में सर हिलाने लगी। इसकी हरकत पर ज़ाविर से मुस्कुराहट ज़ब्त करना मुश्किल हो गया था। इस लम्हे ज़रमिश के चेहरे पर किसी मासूम बच्चे की तरह मासूमियत थी। वैसे तो तुम्हारे हुस्न को अल्फाज़ के पिराए में डालना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कितनी खूबसूरत हो? उसने ज़रमिश के मखमली कोमल लबों को देखते पूछा तो ज़रमिश ने मासूमी से इस बात में सिर हिला दिया। पर अगले ही लम्हे जो अमल इसके साथ ज़ाफ़िर ने किया, वो ज़रमिश के होश उड़ा गया था। ज़रमिश की कमर पर अपनी पकड़ मज़बूत करते हुए ज़रमिश का चक्कर चढ़वा गया था। ज़रमिश से पटी आंखों से देखती बुरी तरह किस्मत आई, और दोनों हाथ ज़ाविर के चरानी मजबूत शानों पर रखे थे। इसके पुरतब्श देखते गुर्बत पर दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा था। इसे ज़ाविर की गुर्बत से किरायत नहीं हुई थी, पर वो इसकी शिद्दत भरे अंदाज पर बुरी तरह डर गई थी। दूर होते ज़ाविर ने उसका चेहरा देखा, जो उसकी बेबाक सी जसारत पर सुरकनारी हो रहा था। क्या हुआ? अभी से सांस मत अटकाओ, सांस लो मेरे रसगुल्ले, उसने मानी खासी से मुस्कुराते हुए ज़रमिश को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते चला था। मगर वह जानता था, अच्छी तरह जानता था, इसने जैसी ज़िंदगी गुजारी है, जिन दर्दनाक हालात में वो गुजरी है, इससे फ़ोबिया है। कोई भी फ़ोबिया, मुझे नहीं पता कौन सा फ़ोबिया होता है, ठीक है। ज़ाफ़िर को इसकी ज़िंदगी की हकीकत जानकर अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। इसने फ़ैसला किया, अब जब तक वह किसी अच्छी सी साइकोलॉजिस्ट से इसकी काउंसलिंग नहीं करवाएगा, अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएगा। आप बहुत भारी हैं। मेरी सांस कमर से ऊपर को होता ज़ाविर का हाथ महसूस करते हुए वो
फ़ौरन बोली तो ज़ावेर चंद लम्हे महज़ूज़ को नज़रों से देखने लगा था। फिर एकदम करवट बदली, ऐसे बदली कि यूँ अब की बार ज़ावेर नीचे और ज़रमीश उसके ऊपर। ज़रमीश के मुँह से हल्की सी चीख निकली, वो परेशानी से ज़ावेर को देखने लगी थी। लो अब तो सांस बहाल हुआ ना, वो शरारत भरे लहजे में गोया हुआ था। ज़रमीश की सीटी गुम हुई और कोई बात ना बन पड़ी थी। अब आपका सांस बंद हो जाएगा ना? वो फिर अहमकाना बात बोलकर ज़ावेर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अहमक लड़की, क्या कभी भूलों से भी किसी का सांस बंद हुआ है? वैसे आप इस वक़्त वादिय दिल में मौजूद जज़्बों के गहरे जंगलात में अच्छी खासी आग भड़का चुके हैं। मिसेज़, अगर नहीं चाहती आप भी इसमें ज़रूरतों खामोशी से बगैर किसी मज़ाहमत के मेरे सीने पर सर रखो और सो जाओ। ज़ावेर की धमकी इस कदर कारामद थी कि वो फ़ौरन ज़ावेर के सीने पर अपना सर रख गई थी। लेकिन कुछ लम्हों बाद ज़ावेर का हाथ अपनी कमर पर रक़्स करता महसूस हुआ था। ज़ावेर, ज़रमिश ने परेशानी से पुकारा था। इन जसारतों पर अगर चीख कर शिकायत किया तो फिर मुझसे बाद में शिकायत मत करना। अगर तुम 2 मिनट में ना सोई, मैं तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दूँगा, ना कुछ सोऊँगा। वो धमकी दे रहा था। ज़रमिश फ़ौरन आँखें मीच की थी। वो ज़रमिश को नॉर्मल करना चाहता था, ज़ाहिर करना चाहता था कि उसकी हकीकत जानने के बाद भी वो इसके लिए उतनी ख़ास है जितनी पहले थी। कई लम्हों तक वो ज़ावेर की शरारतें बर्दाश्त करती रही, पर आँखें न खोली थी। ज़ावेर महसूस होता बार-बार उसको किस में मुलाज़ा कह रहा था। क्या तुम सो गई हो ज़रमिश? 2 मिनट बाद ज़ावेर ने पूछा था, पर दूसरी जानब से खामोशी रही थी। वो जानता था वो जाग रही है, लगता है सो गई। अपने बराबर पर अपने बाजू पर लिटाते इसने ज़रमिश को वो अपने गोश में लिया था, फिर मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क कर दिया कि ये सब इसकी जान पर ही वबाल बना था। अपने जज़्बात पर बंद बाँधना नहायत मुश्किल तरीन अमर था, इसलिए इसने मुस्कुराते हुए सोने के लिए अपनी आँखें मूंद ली थीं। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, रीम धीमी आवाज़ में गुर्राई से जाने क्यों, मगर यकीन था कि इतना सब होने के बावजूद रेहान ज़रूर वहाँ आ जाएगा। लम्हा ब लम्हा इस शैतान की दराज़ी बढ़ी थी। घटिया ना, ना मेरी जान, घटिया तो रेहान है। देखो तुम्हारे साथ कितनी रातें रंगीन करी और फिर तुम्हें ऐसे धुतकारा जैसे जानता ही ना हो। असलहान न्याज़ी ने दूसरे हाथ से रीम का मुँह मुट्ठी में दबोचा था। तुम एक गलीज़ इंसान हो और तुम्हारी ज़हनियत और तुम्हारी ज़ुबान भी तुम्हारी तरह गलीज़ है। रीम बनकर इससे पहले अरसलान कुछ कहता, किचन में तेज़ो इश्ताल से पागल होता, हाथ में एक डंडा लिए रुमाल लिए दाखिल हुआ था। वो चिल्लाता हुआ अरसलान न्याज़ी के जाना पड़ा था, लेकिन इससे पहले अरसलान न्याज़ी के दोनों चमचों ने इसे दबोच लिया था। अरे नुमान अली, तुम वैसे कमाल हो यार, अब तुम्हारी आँख खुल गई है। लेकिन रोज़ जब तुम्हारा मालिक अपनी रात हसीन करने तुम्हारी बेटी के पास आता होगा, तब तो गहरे नींद सोते होगे, है ना? इसके गलीज़ जुमले रीम का चेहरा खौफ व वहशत से सफ़ेद पड़ गया था। जबकि नुमान अली का दिल किया इसकी गर्दन उड़ाते, अपनी बकवास बंद करो और छोड़ो मेरी बच्ची को, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा, हरामखोर। रम नुमान अली गुस्से से दहाड़ा, पर था तो वो भी कमज़ोर लागर-जान। इन लड़कों में से किसी एक का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। अबे यार, इस बूढ़े को ज़रा कमरे में ले जाओ, इसके हाथ-पाँव के साथ इसका मुँह भी बाँध दो। मुझे आज बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और ए बूढ़े, तू भी फ़िक्र मत कर, तेरे मालिक से ज़्यादा कीमत अदा करूँगा तेरी बच्ची की, और तुम लोग जब तक मैं ना कहूँ इस बूढ़े के पास ही रहना। रीम की कमर पर हाथ रखते हुए ख़ुबासे से बोला। रीम बुरी तरह छटपटाई थी। नुमान अली का मुँह दबोचते हुए दोनों नुमान अली को दूसरे कमरे में ले गए थे। जब अरसलान न्याज़ी रीम को खींचता उसके बेडरूम में लाया था। छोड़ो मुझे अरसलान न्याज़ी, कभी से इंसान आदमी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो रोते हुए चीख रही थी। क्या तुमने नहीं सुना, दुश्मन का महबूब भी दुश्मन होता है जाने मन। अब तुम्हारी महबूब ने ही तुम्हें भरी महफिल में पागल साबित कर दिया किया है, तो हम भी थोड़ा फ़ायदा उठाकर सबको यही कह देंगे कि ये लड़की पागल है, जिसे रात के अंधेरों में अपने घर अमीर लड़के दिखाई देते हैं। तुम अब सच में बताओगी तो कोई भी तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करेगा। कैसा? हंसता हुआ रीम को चारपाई पर पटक चुका था। क्या यार, तुम्हारे 2 टके के इस अमीर महबूब ने एक ढंग के बेड तक का इंतजाम नहीं किया। इस चारपाई पर कैसे कंफर्टेबल होते होगे? वो रीम के करीब होता इंतहाई बेबाक और घटिया अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। रीम को अपने कान सांसें करते महसूस हो रहे थे। वो तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करते को सुना तुमने? रीम पूरी तरह चिल्लाई थी। तो अरसलान न्याज़ी का चेहरा सुर्ख हुआ था। एक ज़ोरदार थप्पड़ टीम के गाल पर रसीद किया था। क्या कहा? ज़रा फिर से कहना। वो तुम्हारा महबूब मेरे टुकड़े करेगा। इस बार आया तो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। आधी मौत तो इसकी तभी वाक़या हो जाएगी जब तुम्हें उधड़ी हुई हालत में मेरे दोस्तों के साथ एक ही। अभी वो बोल ही रहा था जब रीम ने कमरे के टेबल पर रखा स्टील का पानी का जग उठाकर ज़ोर से अरसलान न्याज़ी के चेहरे पर मारता, और फिर रुकी नहीं थी, बल्कि अरसलान न्याज़ी के संभलने से पहले कई बार अरसलान न्याज़ी के मुँह पर मारती। वो अरसलान न्याज़ी के चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुकी थी कि यकदम रीम के हाथ से जग छीनते अरसलान ने दूर फेंका था, और एक के बाद 3 थप्पड़ रीम के चेहरे पर रसीद किए थे। थप्पड़ इस कदर शदीद थे कि रीम का दिमाग और गाल दोनों सुन्न हो गए थे। वो ज़मीन पर गिरने लगी थी जब अरसलान न्याज़ी ने इसे फिर से चारपाई पर धक्का दिया था। रीम पर हावी होते रीम के बाजू और रीम की गर्दन पर झुकता। रीम अपने दोनों हाथों के नाखून इसके चेहरे पर गाड़ गई थी। यकदम अरसलान न्याज़ी की चीखें पूरे कमरे में गूंजी थी। वो पीछे होने लगा था, पर रीम ने नाखून इसकी दाहिनी आंख में गाड़ दिया था। आंख से खून बहने लगा
लग गया था। अरसलान न्याज़ी चीखते हुए पीछे हुआ था। इस लम्हे रीम ने वापस स्टील का जग उठाया और ज़ोर से अरसलान न्याज़ी के सर पर मारता। अरसलान न्याज़ी अपनी आँख पर हाथ रखते बहुत मुश्किल रीम को देखने की कोशिश करता। उसकी जाना पड़ा था जब बहुत मुश्किल से कोने पर रखा चाक का आर्टिफिशियल गमला हाथ में उठाते रीम ने अरसलान न्याज़ी के सर पर मारता। इस बार वार बहुत भारी और शदीद था, इसलिए अरसलान न्याज़ी ज़मीन पर ढेर हुआ था। लेकिन फिर नज़र दरवाजे पर खड़ी इन दो मुस्टंडों पर पड़ी तो जान हलक में आ गई थी। पहले ज़मीन पर पड़े अरसलान न्याज़ी को और फिर इस थान पान सी लड़कियों को हैरत अचानक गुस्से से उसकी जानब लपके थे, लेकिन इससे देख रहे थे। फिर लेकिन इससे पहले घर का मेन डोर तकरीबन तार से खुला था और गार्ड्स तेज़ी से अंदर की तरफ जानब बढ़े थे। गार्ड ने कमरे में घुसकर इन दोनों को पकड़ते हुए बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया था। रीमा अपनी जगह पर साकित खड़ी खड़ी थी। जब गार्ड के दरमियान से हान अंदर आया था, नज़र तेज़ी से कमरे में घुमाई तो नज़र ज़मीन पर बेसुध पड़े अरसलान न्याज़ी पर पड़ी थी। फिर दूसरी जानब बेतासुर खड़ी रीम पर, जिसके होंठ के किनारे पर खून लगा हुआ था। इसकी दरगरगों हालत और हल्की कांप रही थी। एहान कदम बढ़ाते उसके मुकाबले आया तो एहान को देखने लगी थी। इस वक्त एहान के तासुरात ऐसे वहशत और हैवानियत भरे थे जिन्हें देखकर एक मरतबा रीम भी डर गई थी। मगर जो वह अरसलान यासी से नहीं डरी थी तो भला इस शख्स से क्यों डरती कि जिंदगी के ओके यहाँ से कि आज जो कुछ भी होता है इस शख्स का जिम्मेदार सिर्फ ये शख्स इस सब का ज़िम्मेदार था। पहले वो इसमें शामिल हुआ था पहले वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ तो लोग इसके दुश्मन बन गए। अब वो इसकी ज़िंदगी से दूर हुआ तो दुश्मन दुश्मन इस पर उदाय थे। इसने इसे बेइज्जत करके रख दिया था, लोगों के सामने इसे झूठा साबित किया था, पागल साबित किया था। इतना पागल कि इसके दुश्मन इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसके घर तक आन पहुंचे थे। और इसके इरादे तो जान ही चुके थे। यहाँ ने इशारा किया तो गार्ड से बगैर रीम की जन्म देखे इस गुंडों को सीटते हुए बाहर ले जा चुके थे। वो पूरी तरह इसकी जान मतवजा होता और दरवाजे के पीछे बनी खूंटी से उसकी चादर उतार कर उसके सीने पर फैला दी थी। यहाँ ने उंगली बढ़ाते उसके होंठ के किनारे से खून साफ करना चाहता, लेकिन रीम ने उसके हाथ को झलक दिया था। पुलिस को बुलाते हुए महज लब भींच कर इतना ही बोल पाई थी, पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ ने उसके सूजी गाल को देखते लब भींचे थे, चेहरा लहू चिलका रहा था और आंखें वहशत और दरिंदगी। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं, ले जाएं अपने चाचा को जो रात को शरीफ लड़कियों के घरों में चोरी छुपे घुसते हैं। वो इंतहाई सफाके से हान का मुआवजा असलान ऐसे करके थी। इसकी आंखों में बुला का गुस्सा था, पर इसका जुमला हान को आरे की तरह ही लगा था। रीम तुम वह तिल मकान लहजों को नरम रखकर कुछ कहना चाहता था, पर रीम ने हाथ बुलंद करके इसे रोक दिया था। और ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, ना ही झूठी मोहब्बत के लारे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा से बहुत मोहब्बतें मिली है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी तीसरे की मोहब्बत की, बल्कि झूठी मोहब्बत की। वो बोलकर कमरे से निकल गई थी, जबकि हान वहीं बतर का बना रह गया था। वो दूसरी बार से जता कर गई थी, मोहब्बत की ज़रूरत इसे नहीं हान को थी, मोहब्बत से वो महरूम था। तो क्या वो हान की झोली में अपनी मोहब्बत बतौर एहसान डाल रही थी, या भीख समझ कर इस पर तरस खा कर इसे मोहब्बत दे रही थी। एकदम में हान के गर्दन की रगें तन गई थी। ये लड़की इस मुकाम पर भी इसे नियत गा रही थी जितने दिन इसने यहाँ को वैल्यू दी थी, वो एक लम्हे भी इसको भीख बनाकर अपनी नेकनामी कर गई थी। पीछे पड़ते शदीद गुस्से के आलम में हान ने अरसलान के बेहोश वजूद को लाते और ठोकरें रसीद की थी। फिर गार्ड को इन सबको गाड़ी में डालने का कहकर वो खुद भी बाहर निकला तो नज़र बरामदे में खड़े रीम और नुमान अली पर पड़ी थी। रीम नुमान अली के सीने में दुबकी बुरी तरह कांप रही थी। नुमान अली इसे देखते ही निकाह फेर चुका था, जबकि रीम स्पार नज़रों से इसे देख रही थी। यहान घर से बाहर निकला तो कई लोगों को दरवाज़ों पर खड़ा देखा जो शायद घर से चीखो पुकार सुनकर बाहर निकले थे। गाड़ी में बैठते हाँ ने गहरी सांस खारिज की, फिर स्टीयरिंग व्हील को थामा था। लौटना तो तुम्हें मेरे पास ही है रीम, तुम्हें सिर्फ यहाँ दिलशेर का ही होना है, फिर मैं तुम्हें अपने मोहब्बत स्थान में दूंगा। मैं तो यहाँ सुलह करना चाहता था, पर तुम्हारे अंदर अकड़ बहुत है जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कुछ मुखातिब हुआ था। उनकी गाड़ियाँ वहाँ से निकली तो लोगों में बातें शुरू हो गई थी। इससे पहले घर के अंदर कोई आता रीम ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। नुमान अली झुके कंधों से चार पे बैठ गया था। रीम काफ़ी देर दरवाजे के पास खड़ी खुद को नुमान अली से बात करने के लिए तैयार करती रही। फिर कामते कदमों से नुमान अली के मुकाबले ज़मीन पर बैठी थी। फिर अपने कामते हाथ नुमान अली के घुटनों पर रखे तो नुमान अली ने सुर्ख पुरशिकवा गमों गुस्से भरी नज़रें उठाकर रीम को देखा था। क्या कुछ नहीं था उनकी नज़रों में कि रीम फ़ौरन अपनी नज़र झुकाते आंखें मीच की थी। एक सिसकी कहाँ पे था ये एक्सिस की भरती खुद पर जब्त किया और फिर बगैर नजर उठाए एक एक बात नुमान अली के कुछ गुजार करती चली गई थी कि ऐसे
کہ ہاں کہ کیسے ایہان نے پہلے اسے ٹارچر کیا اور پھر اس کے ساتھ محبت کا گیم کھیلا۔ نعمان علی پتھر کا ہوتا سنتا گیا تھا، وہ کیسے بیٹی سے شکوہ کرتا جبکہ وہ خود تو ایہان سے شیر پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے ایہان کی ریم میں دلچسپی بھی محسوس کی تھی، پر وہ جانتا تھا ایہان کا کردار کرا ہے، اس کو کبھی کسی لڑکی سے تعلق نہیں رہا تھا۔ دھوکہ خالی ریم نے نہیں کھایا تھا، دھوکہ تو اس نے خود بھی کھایا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس نے اپنی بیٹی کو اتنا تو اعتبار بخشا تھا کہ آج وہ بلا جھجک روتی ہوئی بالکل اپنا دل کھول کر بیان کر گئی تھی۔ بابا قسم لے لے، میں نے محبت کر کے غلطی کی ہے، پر کبھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنا سر نعمان علی کے گھٹنوں سے ٹکا گئی تھی، تو نعمان علی نے اپنا کامتا ہاتھ ریم کے سر پر رکھ دیا تھا۔ ریم اپنی جگہ پر پتھر کی ہو گئی تھی، فوراً چہرہ اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا تو وہ تو سمجھی تھی کہ اس کا باپ اس کو برا پہ لگائے گا، اس کے پیدا ہونے پر افسوس کرتے اسے کوسے گا، اسے مرنے کی بدعا دے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو مزید ٹوٹ کر بکھری تھی۔ صبر کرو، نعمان علی نے اس کے دیکھنے پر فقط اتنا کہا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ اپنے باپ کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پوری رات جیسے باپ بیٹی کی آنکھوں میں کٹی تھی، رات بہت ہولناک اور اذیت بھری تھی، اور نیم نعمان علی کے نصیب میں رسوائیوں بھری تاریکی لکھ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پر نہ ختم ہونے والی دستک کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ محلے کا ہر فرد آ کر نہ جانے کس چیز کی تعزیز کر رہا تھا۔ بغیر لوگوں نے تو بعض لوگوں نے تو یہ تک اخذ کر لیا تھا کہ ریم نعمان علی اپنی عزت گنوا چکی ہے، اس لیے کوئی نعمان علی کو صبر کی تلقین کر رہا تھا تو کوئی ریم کو ملامت۔ یہ کہانی بھی چند گھنٹوں میں گھڑ کر مشہور ہو گئی تھی کہ ریم نعمان علی ایک نہیں دو لڑکوں کو ایک ساتھ چلا رہی تھی اور گھروں پر ملاقاتیں جاری تھیں، اس لیے دوسرے والے نے پکڑ لیا اور شدید لڑائی ہوئی ہے اور نہ جانے کتنی باتیں۔ جتنی زبانیں گرتی جا رہی تھیں اتنی ہی کہانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا یہاں تو ہر کوئی رائٹر تھا، دوسروں کی زندگیوں پر کہانی لکھنے والا۔ ابھی بھی ان کا آنا جانا جاری تھا، جب گھر کے باہر ایک بڑی عالیشان گاڑی آ کر رکی تھی۔ سب لوگ حیرت سے جمع ہوتے اس گاڑی کو دیکھنے لگے جس کے پیچھے گارڈز تھے۔ نظریں تو تب ٹھہریں جب اس گاڑی سے ایک سانولے رنگ کا خوبرو نوجوان نکلا، جسے دیکھتے ہر نظر ٹھہر سی گئی تھی اور آنکھیں رشک سے پھیلی تھیں۔ آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے، بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنے آستین کو نے تو کھول کیا، وہ کوئی یوں براندل شعر تھا۔ اف کیا حسین شہزادے جیسے امیر کبیر مرد بازار کے اس لڑکی نے، شکل سے تو اچھی خاصی شریف اور معصوم لگتی ہے۔ محلے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے جلتے ہوئے کہا تھا، جب ایک افت بھری قہر بار نظر ڈالتا برہان گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ جب مہرو چھوڑ کر جا رہی تھی جس کا باپ مرا تھا، تب بھی لوگوں نے ایسے ہی جمع ہو کر محض تماشا دیکھا تھا۔ برہان گھر کے اندر داخل ہوا تو چارپائی پر نعمان علی کے ساتھ دو مرد بیٹھے ہوئے تھے اور کرسیوں پر دو عورتیں تھیں۔ براندل شیر کو اپنی دہلیز پر دیکھتے نعمان علی کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہچان کیا تھا یہ شخص، کوئی اور نہیں براندل شیر ہے، اس کا بڑا مالک۔ دل میں خوف ہوا کہ اب نہ جانے کون سا صدم توڑے گا، کیونکہ برہان سے اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ وہ غصے کا بہت تیز، مغرور، ظالم اور خود پسند شخص مشہور تھا۔ نعمان علی کی بھی رائے اس کے متعلق یہی تھی۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے نعمان علی۔ برہان نے ایک چٹتی سی نگاہ وہاں بیٹھے نام نہاد غمخوار پر ڈالی تھی۔ براندل شیر کا اشارہ سمجھتے ہوئے سب منہ بناتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعمان علی، ان امیر جادوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان میں سے ایک آدمی جلتے ہوئے بولا تو برہان نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ براندل شیر نعمان علی کے مقابل بیٹھا اور نعمان علی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو نعمان علی بالکل خاموش تھا۔ برہان نے کچھ لمحے نعمان علی کو دیکھا، پھر بات کا آغاز کیا تھا۔ جو براندل شیر بات کرتا جا رہا تھا، نعمان علی کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پر اطمینان پھیلتا جا رہا تھا۔ جب بات مکمل ہوئی تو تشکر کے احساس نے نعمان علی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ رو کر مجھے شرمندہ مت کرو نعمان علی، تم تیاری کرو، میری گارڈز تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی تم کہاں گئے۔ تمہاری ہر ضرورت وقت پر پوری ہوتی رہے گی۔ بچی کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اور اس کی پڑھائی ضائع بھی نہیں ہوگی۔ براندل شیر نے اطمینان سے مگر بتاثر سپاٹ چہرہ لیے کہا تو براتے ریم کے قدم اپنی جگہ پر ٹھہر سے گئے تھے۔ برہان کی نظر اس پر پڑی تو وہ کھڑا ہوتا ریم کے مقابل آیا تھا۔ ریم نے اس کی آخری بات سنی تھی اور وہ برہان کے یہاں آنے کا مقصد بھی سن چکی تھی کہ امیر شخص اپنی دولت سے انہیں احسان طرح دبا کر دور بھیج رہا تھا تاکہ وہ لوگ اس کی بھائی کی زندگی سے نکل جائیں۔ بہت بہادر ہو تم، جتنا تمہارے بارے میں سنا تھا اس سے بالکل مختلف، فخر ہے یہ تمہارا نعمان علی، برہان نے سراہنے والے انداز میں کہا تو نیم نے قوت سے سر جھٹکا تھا۔ اگر اتنی اچھی تھی تو یہاں انہیں بھگانے کیوں آیا تھا؟ اپنے بھائی کو دو تھپڑ لگا کر اسے وہ عزت دلواتا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس تمام محض کے بعد وہ کچھ مثبت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دل میں غموں، غصے اور نفرت کا طوفان سا مچل رہا تھا۔ براندل شیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ریم موٹی بھیج کی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں ایک بار ایہان شیر سے ملنا چاہتی ہوں بابا۔ ریم کی بات پر وہ دونوں چونکے تھے۔ ریم، نعمان علی نے تنبیہ کرتے پکارا تھا، بابا پلیز، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور پیچھے کبھی نہ مڑنے کے لیے؟ ایک آخری ملاقات بہت ضروری ہے، ورنہ اگر کہیں چلے بھی گئے تو میں یہی رہ جاؤں گی۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ نعمان علی نے برہان کی طرف دیکھا تو برہان نے جاتے ہوئے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ریم ایہان سے ملے، پر روکنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسری
اس کے بعد دوسری ہدایات کرتا بران وہاں سے نکل گیا تھا۔ عنوان علی اپنا سامان پہننے لگا تھا، ریم لب نیچے سب دیکھتی رہی، پھر اپنا مایا بہن اور ابائی کے اوپر بڑا سا اسکارف لیتے ہوئے کچھ پیسے اور بیگ لے کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ مین روڈ پر آئی اور رکشے میں سوار ہوتی ایہان کے گھر کا ایڈریس رکشے والے کو بتایا تھا۔ رات کے 12 بجے کے بعد رزاق خان زدہ بڑی خاموشی سے براندر شہر کے ایک گارڈ کے دوست سے اس وقت اس دشمن جان کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے گارڈ کے ذریعے اس نے گارڈ کو خریدنے میں کامیاب ہوا تھا۔ رات کو ملگجا اندھیرا سا ہر جو پھیلا ہوا تھا، وہ دبے قدموں لاکھ کھلی کھڑکی سے اس کمرے کے اندر کھوتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس ڈرپوک نازک جان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوگی اور اس کا اندازہ درست نکلا تھا۔ لائٹ جلی ہوئی تھی، کمرہ کافی روشن اور کچھ تھا۔ اتنے وقت بات ادارے یار کے جان اسے تڑپا ڈالا تھا تو وہ لبک کر بیٹھ کے جانا پڑا تھا۔ مکملی آرام دہ میرون بستر پر وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ لائٹ سی گرین شرٹ ٹراؤزر میں دوپٹے کے تکلف سے بے نیاز وہ اپنی ایک ٹانگ کمفرٹر کے اندر اور دوسری اس کے اوپر رکھے گہری نیند میں تھی۔ میں اس وقت گلابی رنگت میں اس وقت زردیاں کھلی ہوئی تھی، گلاب چہرہ کملایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود شاید براندہ شہر اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اس حالت سے کافی زیادہ بہتر حالت میں تھی جو وہ ارزا کے گھر پر آخری 2 دنوں تک تھی۔ 2 دنوں تک تو اس نے بھوکے پیاسے رہ کر کچھ زیادہ ہی اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ تبھی تو رضا خان زدہ کو براندہ شہر کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دھڑلے سے اپنی بیوی کو لے جانے کا تقاضا تک نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے باوجود ارزا کو اس کا چہرہ مچایا ہوا لگا تھا، لگا جیسے آتش ہجر نے پل پل ارزا کو سلگایا تھا۔ لگتا تھا وہ بھی سانچ میں پل پل موم کی طرح پگھلی ہے۔ بے اختیاری کے عالم میں وہ آنکھوں میں نمی سمیت جذبوں کا جہاں آباد کے اس کے سرانے بیٹھا تھا۔ اس کے کندھوں سے نیچے تک آتے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چند شرارتی لڑے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ جی بھر کر اسے دیکھ چکا تھا۔ اس بھاگ بھرے انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو کومل چہرے سے وہ لڑے پیچھے ہٹائی تھی۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اس کے اس طرح سونے سے بھی وہ ذرا نہ قسمسائی تھی۔ تبھی ارزاق مطمئن ہو کر اس کے پیروں میں نیم دراز ہوا تھا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے گرد اپنی باہوں کا آثار کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ اس کی غربت میں ہمیشہ کی طرح ایک سکون بھرا سرور تھا کہ ارزاق سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا تھا، مگر ماضی کی جھڑوکوں میں جھانکتے آنکھوں میں نمی ضرور در آئی تھی۔ اس کا وہ جھانسی کی رانی والا روپ یاد کر کے وہ ندامت کی آگ میں جھلسا تھا کہ اس کے جبر و ظلم نے اس نازک سی جان کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ 2 بوٹی کے لیے اس پر روح جھاڑتی، اس سے لڑتی جھگڑتی وہ کس قدر حسین و دلکش لگا کرتی تھی کہ ارزاق نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر پوری طرح دل ہار گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے منا لے گا، اس کے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگنی پڑی تو وہ بھی اسے مانگ لے گا، اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، ہرگز نہیں۔ اب بھی وہ تو رگ جاں اس کے سینے سے لگی اس کے جسم و جان میں سکون اتار گئی تھی۔ وہ مسرور سا اب بھی اس کا سر تکیے پر رکھے اس کے اوپر گہری کٹاس سجایا تھا۔ بڑی جلدی سینے میں سر اٹھاتے جذبوں کے ایک طوفان نے شور مچایا تھا۔ بے خودی کے عالم میں اس نے جھک کر انتہائی نرمی و عقیدت سے اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ ارزا خان زدہ کو تو خود سے ہی کافی شکوے گلے تھے کہ اس کی نادانی اور ناسمجھی کے باعث وصل کے لمحات بھی گنے چنے میسر آئے تھے۔ تبھی تو شدت بھری تڑپ حد سے سوا تھی، اس لیے اب وہ اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کیے ہوئے تھا۔ الف اب اس کی باہوں میں قسمسائی تھی تو ارزاق کو اپنے جذبات پر بند پالنا پڑا تھا۔ وہ نرمی و محبت سے اس کی پشت سے لانے لگا تھا تو وہ پھر پرسکون ہو کر گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ ارزاق نے مسکراتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اور سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ اتنے دنوں کی بے قراری کو کرار ملا تھا۔ بہت جلد وہ بھی گہری نیند سو گیا تھا۔ پوری رات اس کے پہلو میں گزاری تھی، مگر پھر تقریباً فجر سے چند لمحے پہلے اس کا فون وائبریٹ ہوا تو ارزاق کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے باڈی گارڈ کی جانب سے یہ الارم تھا کہ اب اس کے دل شیر مینشن سے نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ تبھی ارزاق اٹھ کر بیٹھا اور اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے وسیع سے ایک نظر اس نازک وجود کی جانب دیکھا، جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے اور بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے نیچے اترا تھا اور وہ اپنے شوز پہن کر کھڑکی تک آیا تھا اور ایک نظر پھر اس دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد کھڑکی سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے دبے پاؤں ویسے دل شیر مینشن کے پچھلی جانب کے طویل و گریز لون سے نکلا تھا، مگر ابھی وہ گیٹ تک پہنچا تھا کہ فون پھر سے وائبریٹ ہوا تھا۔ ارزاق چونکا تھا، جلدی سے فون نکال کر اوپن کیا تو صالح صاحب کے میسج کے نام کا نوٹیفیکیشن مل گیا۔ وہ تاب سے فون پر جگمگاتا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے میسج اوپن کر کے دیکھا تھا۔
کہ اس کے بہن کے کمرے میں بزدلوں اور چور کی طرح آدھی رات کو گھسنا انتہائی غیر اخلاقی کی حرکت ہے۔ محتاط رہیں، آئندہ جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ میسج پڑھ کر رزاق بڑا گلا تھا۔ سلگتے تپتے ہوئے اپنے جبڑے اور مٹھیاں زور سے کھینچ لی تھی اور پھر جلدی سے فون پر رپلائی ٹائپ کیا تھا۔ کسی کی سو کالڈ بہن غالباً اس چور اور بزدل کی قانونی اور شرعی بیوی ہوتی ہے۔ کسی کے باپ میں اتنی جرأت نہیں کہ بیوی سے ملنے پر چور کو روک سکے۔ ارزاق نے فوراً میسج کا رپلائی کیا تو آگے سے کہہ کے والا مجھے بھیج کر اسے مزید پتنگے لگائے گئے تھے۔ وہ چلتا کوڑتا پراندل شیر کو گالیوں سے نوازتا شیر مینسر سے باہر نکل گیا تھا۔ اوپر پراندل شیر گہرا مسکراتا اپنی کھڑکی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ارزاق کاندھا تک اور ضد کر کے اسے اتنا ہی مزہ آیا تھا جتنا کہ زاویار کو تنگ کر کے مزہ آتا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائی تھی۔ جب اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے آن کے بارے میں کل اور آج رات کی ساری کارکردگی معلوم ہوئی تھی۔ خاص آدمی نے بتایا تھا کہ گارڈز اور ریحان نے ارسلان نیازی پر قابو پا لیا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا ریحان اور ارسلان نیازی کے لیے کافی تھا، مگر اسے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اس سارے حادثے سے بہت بڑا وبال کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر برہنتی شیر اس سارے میچ کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کو پوری غرض سے نکلا تھا۔ وہ ارسلان نیازی اور اس کے چمچوں کو لے کر باکسنگ روم میں آیا تھا۔ ان تینوں کو باندھنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ پر پٹی لپیٹ رہا تھا۔ پھر ملازم نے اس کے اشارے پر پانی سے بھرا جگ ارسلان نیازی کے سر پر ڈالا تھا۔ ارسلان نیم غنودگی میں تھا۔ جب تک اس کے ہوش بحال ہوئے تھے ریحان اس کے دونوں ساتھیوں کو بری طرح درگزر بنانے لگا تھا۔ بری طرح مارتن کی چیخ کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ حیانتی شیر سے معافی طلب کر رہے تھے۔ شٹ اپ، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی، اسے ہاتھ لگانے کی؟ میں یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ میری سب سے قیمتی چیز پر تم لوگوں نے گندی نظر ڈالی کیسے؟ وہ دیوانوں کی طرح چلانے لگا تھا۔ ریحان کی گردن کی نسیں ابھر رہی تھیں۔ اس کا وزن چلا، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے۔ ہم وہاں خود نہیں گئے تھے، اسے بلایا تھا ہمیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ جھوٹ بونک کر تم پھر غلطی کر رہے ہو۔ غصے سے اس کا منہ بوجھ تھی۔ ریحان حلق کے بل دھاڑا تھا۔ کچھ دن تم نے جی بھر کے انجوائے کر لیا، تھوڑا ہم کر لیں گے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حیانتی شیر ارسلان نیازی کی مسکراتی آواز نے ریحان کو اپنی جانب متوجہ کی۔ اس کی غلیظ باتوں پر ریحان نے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر رسید کیا، پر ارسلان نیازی کی مسکراہٹ چہرے سے جدا نہ ہوئی تھی۔ تم کیوں اتنا سیریس ہو رہے ہو دوست؟ وہ لڑکی تمہاری طرف دولت کی خاطر متوجہ تھی، محبت نہیں کرتی تم سے بلکہ بھیک دے رہی تھی تمہیں اپنی محبت آفٹر آل ایک ترسا ہوا سو کالڈ ارسلان نیازی کے منہ پر در پہ در مارنے والے مکوں نے ارسلان نیازی کو واپس نیم بے ہوشی کر دیا تھا۔ پر اس کے چہرے پر موجود شیطانی مسکراہٹ نے جلتے پر تیل کا کام کیا تھا۔ کس کا منہ بند کرا ہوگے؟ حیانتی شیر ایک لڑکی کی محبت میں بھکاری بن گئے ہو۔ اگر اتنے ترسے ہوئے تھے تو میں باپ کا پیار بولتے بولتے بے ہوش ہو چکا تھا جبکہ ریحان کا وجود سن پڑنے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا راز سب جان گئے تھے، وہ محروم تھا۔ یہ سب تو اس نے کبھی خود سے قبول نہیں کی تھی، اور یہ مالک نے اس کی محرومی کا اشتہار ہر جگہ حتیٰ کہ اس کے دشمنوں کے علاقے میں لگوا دیے تھے۔ وہ سب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ لڑکی اتنی صفا کیسے ہو سکتی تھی؟ اپنے ہاتھ سے پٹی اتارتے ریحان نے زور سے زمین پر پھینکی اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ گارڈ کو بلوا کر ان کا علاج کرواؤ کر شام تک مجھے ان کی حالت بالکل درست چاہیے۔ ان کو فارم ہاؤس پہنچا دو، کسی کو ان کے متعلق کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ملازم کو حکم دیتا باہر نکل گیا تھا۔ دل و جان میں نئے سرے سے آگ سی دہکنے لگی تھی۔ اپنی شرٹ جسم سے نوچتے ہوئے اس نے سیڑھیوں سے نیچے اترتے پھینکی اور گھر کے بیک سائڈ پر بنے سوئمنگ پول کے پاس آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ سے، اس گھر سے، ہر چیز سے، اس کے الفاظ سے ایک الگ ہی قسم کی نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ارسلان نیازی اور اس کے گنڈوں کو وہاں سے نکال آیا تھا تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ اس پر کیا بیت رہی تھی، اس کا پورا محلے میں کیا تماشا لگا تھا، اس واقعے کے اتنے سنگین نتائج تھے، وہ بری طرح بے خبر تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اپنے دل میں جو درد اٹھا تھا وہ ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس کے درد، تکلیف اور اذیت کی تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس کے جملے کی وجہ سے جو دل میں تیش و اشتعال کا طوفان سا اٹھا تھا وہ اس کے باپ کو محفوظ کر کے دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی کے تلخ ترین الفاظ تھے جو زہر بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگے تھے۔ وہ جو ہر چیز سے بے نیاز بنا پھرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی محرومی، سب سے بڑی کمزوری اس لڑکی نے سب پر یہاں کر دی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا رہنما علی، میری محرومیوں کے اشتہار لگوا کر تم نے یہاں دل شیر کو توڑ دیا۔ تم پر ہاتھ ڈالنے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، انہیں روز ایک نئے طرز کی موت دوں گا، پر معاف تمہیں کسی صورت بھی نہیں کروں گا۔ جتنی اذیت تم نے مجھے دی ہے میرا ہونے سے پہلے وہی اذیت تمہیں بھی جھیلنی پڑے گی۔ You have to pay for every word you said۔ پانی میں ڈائی مارتے ہوئے خود سے عزم کر چکا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ خود کو ٹھنڈے ٹھار پانی میں رکھ کر اذیت دینے کے بعد وہ پول سے باہر آیا تھا۔ تب تک اس کے خاص ملازم نے اطلاع دی تھی کہ ارسلان نیازی اور اس کے باقی کے
اور اس کے دوستوں کو خفیہ جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی وضعیت سے اس قدر دوچار تھا کہ ساری رات سگریٹ پھونکتے آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ اس رات ایک پل کے لیے وہ سو نہیں سکا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہ وحشت اور تنہائی تھی جس نے دل و دماغ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اب تو سکون تبھی میسر آنا تھا جب تک وہ اس خون شام بلا سے اپنی ہر اذیت کا حساب بھاگ کرتا، اس کے وجود کو اپنے سکون اور راحت کا سبب بنائے گا۔ اسے خود پر اپنے کیے وار پر اتنا تو بھروسہ تھا کہ وہ اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں پائے گی۔ پھر وہ یہ کیا تھا مطلب؟ پھر وہ بھی اس سے ایک ایک چیز کا مرتبہ تو اپنی ہر اذیت کا بدلہ لے گا۔ تب اس کو ایہان شیر کے آگے جھک جانے پر ریم کے کڑکڑانے پر وہ اپنی محبت اس کی جھولی میں ڈال کر اس پر احسان کرتے اپنا حساب باق کرے گا۔ ہاں اب ایسا ہی ہوگا۔ یوں بھی رات حادثہ ہوا تھا۔ نمانا نے بیٹی سے اس کی حقیقت ضرور پوچھی ہوگی، تب اس نے سارا سچ اپنے بابا کو اپنے بابا کو تو بتانا پڑا ہوگا، اور اب اپنے باپ کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا اور لاشعور میں ایسا ہونے کا منتظر بھی تھا، لیکن یہ موقع اتنی جلدی میسر آئے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے آنے کی امید سن کر جو رات پل پل کانٹوں اور انگاروں پر لوٹا تھا۔ اب دل کو راحت و سکون پہنچا تھا۔ آخر آنے کا علم بلند ہو ہی رہا تھا۔ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ اندھیر شیر کی انا کی سب سے بڑی جیت اور کیا ہو سکتی تھی؟ رات اس نے کہا تھا کہ اس کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بولا تھا اپنے بابا کی محبت کی سوائے سے جس کی محبت چاہیے تھی اس کے پاس چل کر وہ خود آخر کار آن پہنچی تھی۔ محبت کی دہائی دینے آئی تھی ہوگی۔ وہ تو بہت نہ مغرور ہوتا، تو وہ کیوں نہ مغرور ہوتا۔ اب بس اسے جھکا کر اس کے پہلے ہاتھوں میں محبت کی بھیک ڈالنا باقی تھی جس کے لیے وہ دل و جان سے شدت سے منتظر تھا۔ وہ خود کو اس عالیشان گھر کے سامنے لے تو آئی تھی، پر اب جس کام کے لیے آئی تھی وہ بہت مشکل ترین امر تھا، اور مشکل ہونے کے ساتھ نہایت ضروری بھی۔ جب ہی رکشے والے کو پیسے نکال کر دیے اور باہر رکنے کا کہا تھا، آج جو وہ کر رہی تھی کہیں نہ کہیں اس کا انجام بخوبی جانتی تھی، لیکن دل کے اندر کوئی مہم سی امید بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اپنے دل کی آواز سن کر اگر وہ رکنا چاہتی تھی تو کسی خاص وجہ سے، اور اگر یہاں سے نامراد ٹھہری تو اپنے تمام کشتیاں جلا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دل کو مکمل بنجر کرنے کی ٹھانتے وہ قدم اندر کی جانب بڑھا گئی تھی تاکہ پھر سے اس شخص کی تمنا کی خواہش لیے اس کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ دل تو اس کے حق میں کل سے ہی عجیب و غریب طرح کے اظہار اور ہلے بہانے پیش کر رہا تھا۔ اسے یہ تک سوچنے تک مجبور کر دیا کہ ہو سکتا ہے ایہان اپنے دوستوں کے سامنے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو۔ آخر پوری یونیورسٹی میں مغرور شہزادے کے نام سے مشہور تھا، تو یہ کس طرح گوارا کرتا کہ کوئی اسے یہ کہہ دے کہ وہ عام غریب سی لڑکی کی محبت میں گرفتار اس کے سامنے بے بس ہے۔ یقیناً اس نے سب اپنے دوست سے جھوٹ کہا ہوگا۔ دل ہزار طرح کی طویلیں پیش کر رہا تھا۔ تبھی آج وہ اس سلسلے کو آر یا پار کرنے آئی تھی۔ بہت مشکل سے وہ خود کو گھسیٹتی اس عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے۔ ملگچے سے لباس پر روایا اور چادر پہنے ہوئے اس وقت برسوں کی تھکن زدہ ہاری ہوئی مسافر لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، کوئی خاص بات ہے؟ نعمان علی یہاں نہیں ہے؟ کچن سے نکل کر آتے خانسامہ کمال انکرنی سے دیکھ کر کہا، وہ کہا مجھے یہاں دل شیر سے ملنا ہے۔ زبان لڑکھڑائی مگر مٹھیاں بیچ کر بول ہی دیا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا ان سب سے دور جانے کے لیے پیکنگ کر رہے ہوں گے۔ اوہ اچھا، آپ بیٹھو بیٹی، میں انہیں اطلاع دے کے آتا ہوں، کمال انکل بول کر سامنے سے اوپر جاتے سیڑھیوں کی دوسری منزل پر وہ اپنے تیسرے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئے تھے۔ ایہان جو دل و جان میں وحشت بھرے اپنے موبائل میں بزی تھا، دروازے پر دستک سن کر نوبات کو کمال کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ دیکھا تو خانسامہ تھے۔ چھوٹے صاحب، نعمان علی کی بیٹی ریم آپ سے ملنے آئی ہے، کافی پریشان لگ رہی ہے، لگتا ہے کوئی یونیورسٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ کمال نے جو محسوس کیا وہ ایہان کو بتا دیا تھا۔ وہ کہیں مصروفیت کا بہانہ بنا کر ملنے سے انکار نہ کرتے۔ یہاں سب جانتے تھے کہ وہ کس قدر عازم مزاح آدمی ہے، مگر ریم کا نام سن کر اتنے وقت وار اس کے لبوں پر کسی فاتحہ جیسی مغرور اور مسرور مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اسے یہاں میرے روم میں بھیج دو آپ، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر کمال نے حیرت و چنبے سے اسے دیکھا تھا کہ حاضر شیر اپنے بیڈ روم میں کسی مکھی کو بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ آگے کوئی لڑکی؟ جی اچھا صاحب۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا واپس مڑ کر نیچے آیا تھا اور سامنے
बैठी ज़मीन पर निगाहें गाड़े हुए लड़की को रेहान का पैगाम देता। रीम ने आस्तीकी से इस बात में सर हिलाया और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई थी। इसके कमरे से बाहर आकर दस्तक दी थी। अंदर आ जाओ, रेहान की भारी आवाज़ वहाँ गूंजी तो रीम आहिस्तगी से अंदर दाखिल हो गई थी। वो कमरे में आई तो इसे अपने बेड पर बड़ी शान से बैठे देखा था, जिसने अपनी दोनों टांगें बेड से नीचे लटका रखी थी। रेहान ने गौर से देखा था, सुर्ख भीगा बड़ा चेहरा, रोशन आंखें, कुछ राग जैसे बदम पड़े हुए थे। आंखों की गिर्द सूजन भी थी। वो मुसलसल कुछ कहने की चाह में अपने लब काटती, हाथों की उंगलियां आपस में चटका रही थी। इधर बैठो, यहाँ ने सोफे की जानब इशारा किया तो वो सामने बड़े सोफे पर टिक सी गई थी। कहो क्या कहना है, यहाँ ने बेतौसे लहजे में कहा था। आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ दे शेर साहसी ने मेरे और मेरे पापा को तोड़ के रख दिया है, कहीं ना कहीं जिसके जिम्मेदार भी पूरी तरह आप ही हैं। बाबा समझ नहीं पा रहे, कहते-कहते रीम की आवाज़ भर आई थी। तो अब आगे आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। रीम ने वो मुश्किल कहा था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए रीम? इसने इसी पर सुकून अंदाज में इत्मीनान से पूछा था। कल जब वो सब कुछ ठीक करने आया था तो किस कदर जलील किया था रीम ने इसे, हत्ता कि इसका मुवाज़ना असलान जैसे गलीज़ आदमी से कर बैठी थी। वह कैसे भूल सकता था जब से कुछ कुछ बुलाए वो दौड़ा चला गया था। इसके आगे झुक गया था तो इस लड़की ने पुकार दिया था। तो अब क्या चाहती थी? इसने फैसला कर लिया था, वो अब इस लड़के के आगे नहीं झुकेगा। रीम ने उसकी जानब देखा था, जिसके चेहरे पर ढूँढने से भी कोई तासुर दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस उसकी जानब देखने के बजाय मुसलसल फ़ोन स्क्रॉलिंग किया जा रहा था। मैं बाबा से आपकी बात कर लूँगी कि आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझसे निकाह कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लफ़्ज़ बस कर अदा हुए थे। ये रीम रुमाने के लिए एक मुश्किल तरीन नंबर था। कल रात इस शख्स को धुतकारते इसने फैसला किया था कि वो कभी इस शख्स की शक्ल नहीं देखेगी, लेकिन इसके बाबा ने जो फ़ैसला किया था, वो वापस इस शख्स के सामने झुकने के लिए मजबूर हो गई थी। मगर बहरहाल इसने अपना मुद्दा बयान कर ही दिया था। इसकी बात पर मुकाबिल अपना फ़ोन बेड पर रखकर अब पूरी तरह उसकी जानब मुतवज्जह हुआ था। मैं पसंद करता हूँ, तो क्या मुझसे शादी कर लोगी? या तो तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो तो मैं कोई बात भी करूँ? तुम्हें क्या मुझसे मोहब्बत है? यहाँ ने इसकी काजल पहली आँखों में देखकर पूछा था। तो अब वो लड़की उसकी ज़ात पर ही एहसान कर रही थी। यानी यहाँ उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता था। वो फ़कत इसके लिए शादी करे इसलिए शादी की पेशकश कर रही थी कि वो रीम को पसंद करता है, या इसके बाबा इसे सारे मैस से बाहर निकल आएँगे। यानी कि और एहसान। जी, वो बस निगाहें झुकाकर इतना ही इकरार कर सकती थी। ये कबूल करते हुए इंतहाई सिबकी और ज़िल्लत के एहसास ने इसे घेरे में ले लिया था। लेकिन वो हर एहसास अपने दिल से मिटा देना चाहती थी। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ना ही तुमसे निकाह करूँगा, रेहान ने इत्मीनान से कहा था। रीम ने उसकी जानब देखा था। आप जानते हैं मुझ पर, मेरे बाबा पर रात क्या गुज़री है? रात आप हर झगड़ा, हर नाराज़गी भूल कर आए थे। ये इस बात की दलील है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, वरना वो बोलते-बोलते रुकी थी। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ, इस वक़्त मुझसे ये मज़ाक मत करें। वो रूहान सी हुई थी। हकीकत तो ये थी, इतना सब होने के बाद भी यहाँ दिल शेर की मोहब्बत दिल से नहीं निकाल पा रही थी। और फिर इसके बाबा ने जो इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया था, तो अपनी मोहब्बत जितने का ये आखिरी मौका इसे मिला था। तो किसने कहा मैं मज़ाक कर रहा हूँ? मेरा और तुम्हारा मज़ाक बनता भी नहीं है। मैं क्यों अपने ड्राइवर की बेटी से मज़ाक करता फिरूँगा? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे तो तुम्हें हर बात पहले से मालूम है, पर तुम अब भी सुनना चाहती हो तो बात खुली गई है, तो सारी सच्चाई बता ही देता हूँ। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। रीम भी उसकी जानब देखती अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। वो कदम-कदम चलता उसके रूबरू आकर खड़ा हुआ था। इसके हर अल्फ़ाज़ पर रीम नुमाइल के मासूम चेहरे के तासुरात बहुत तेज़ी से बदले थे, लेकिन इसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी, अफ़सोस या हाथ-ए-शेर को ढूँढने से नहीं मिला था। मगर इसकी आँखों में कुछ तो था जो नाक़ाबिले फ़रामोश था। दरअसल मेरे ज़ाती नौकर की बेटी होकर भी अकड़ बहुत थी तुम में, जो मैं तोड़ना चाहता था। मैंने बहुत अपने दोस्त ज़ैन से बेट लगाई थी कि तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूँगा, झुका दूँगा तुम्हें भी। तुम देखो, तुम्हें झुकाना मेरे लिए कितना आसान था, और तुम्हारी गुरूर और अकड़ की अकड़ की बा बस यही औकात थी कि बगैर किसी रिश्ते के तुम इस वक़्त मेरे बेडरूम में मौजूद हो। वो अब तक के तमाम हिसाब बेबाक कर चुका था। यानी वो इसे अल्फाज़ से नश्तर मारती आई थी। ये खानदशी ने सूद समेत इसे लौटाया था। वो खुद ही तो कहती थी मोहब्बत से महरूम शख्स है, तो भला जिससे किसी ने मोहब्बत की ही नहीं, वो कैसे किसी की मोहब्बत का मान रख सकता है? क्योंकि रीमनू मानाली ने भी तो मोहब्बत के नाम पर एहसान किया था। यहाँ ने इसी सर्द पथरीले बेतासुर लहजे में कहकर इसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेरती थी। रीम उसकी आंखों में इसके अल्फाज की सच्चाई तलाशने लगी थी। इस वक्त क्या नहीं था रीम की आंखों में, तकलीफ, दर्द, अजियत, अपनी ज़ात को रेज़ा रेज़ा होते देखने का अज़ाब। इसने मोहब्बत की थी, इसे कोई अफ़सोस नहीं था। इसने एक अमज़र, बुज़दिल और अनापरस्त शख्स से मोहब्बत की थी। इस चीज़ का अफ़सोस शायद इसे मरकर भी नहीं होने वाला था। इस पूरे खेल में वो अपना दिल हारी थी। सहशुकर की इज़्ज़त नफ्स बेबाकी थी, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। हान को लगा था वो ये सुनकर रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, इसके सामने गिड़गिड़ाएगी, जाने क्या कर बैठेगी। मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह रोज़ बेतासुर सर्द निगाहों से हान की जानब देखती, किसी गैर मरे नुक्ते को घूरे जा रही, जिसे हान काफ़ी बदमज़ा होता चिढ़ सा गया था।
वो मुंतज़िर था कि वो रोए, सामने झोली पिलाए और फिर हाथ शेर बतौर एहसान अपनी मोहब्बत इसकी झोली में डाल दे। अब बोलती क्यों नहीं हो? बोले, हाँ ने झुक कर कहा था, मगर वो तो जैसे पत्थर की हो गई थी, ना आँखों में आँसू, ना लबों से कुछ कहा था। उल्टा ही हाथ शेर को ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपना टेम्पर लूज़ करता कुछ कर बैठेगा, या तो अपने सामने खड़ी लड़की को झंझोड़ कर इसका सख्ता तोड़ेगा, या फिर इस पूरे महल पर पेट्रोल डालकर इसे आग लगा देगा। इससे पहले हान कुछ समझ पाता, वो बगैर एक भी लफ्ज़ बोले इसके कमरे से भाग से निकल गई थी। यहाँ ने बड़ी-बड़ी आँखों से खाली दरवाज़े की जानब देखा था। रीम नुमान अली बोला कि बल ठाड़ा था, भागकर कमरे से बाहर आया था, मगर वो तब तक लाउंज भी पार कर गई थी। रीम ने उसकी पुकार पर पीछे पलटकर नहीं देखा था। अब वो पीछे पलटकर देखने वाली भी नहीं थी। आन के माथे की रगें फूलने लगी थी, जैसे अभी फट पड़ेंगी। हाउ डेयर शी! वो फिर हल्के बल चलाया था। वो एक बार फिर जा चुकी थी, पर रेहान नहीं जानता था। इस बार वो इससे दूर नहीं, बहुत दूर गई है कि आंदिल शेर इसे चाह कर भी वापस नहीं ला पाएगा। वो ना परस शहज़ादा मोहब्बत और अना में अपनी दोनों चीज़ें हार गया था, या खुद को हार गया था। अपनी हाथों के मुक्के से लाउंज के सेंटर टेबल को शीशा चकनाचूर किया था। इसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर इसे परवाह नहीं थी। किचन से खान सामा कमाल को बुला कर बाहर आए थे और एहान की हालत देखकर तशवीश हुई थी। छोटे साहब, क्या हुआ है आपको? ये चोट कैसे लगी? आप तो ठीक है ना? कमाल बोल रहा था, मगर एहान को सिर्फ इसके हिलते हुए लब दिखाई दे रहे थे। कानों में सीटियां सी बज रही थी। ये वो इसके साथ क्या कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था। इसका मूजी का क्या मतलब था? आखिर इसने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता। जो हुआ था वो सोच भी नहीं सकता था। एहान की रगों में जैसे लावा बहने लगा था, माथे की रगें फूल सी गई थी। इसे अपना दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ होती महसूस हो रही थी। दम घुटने लगा था। इसने जख्मी हाथ से अपना सीना बुरी तरह दबाना शुरू कर दिया था। छोटे साहब, क्या हो रहा है आपको? कमाल घबराया था और वो तेज़ी से फ़ोन निकाल कर प्रांतीय शेर का नंबर डायल किया गया था, क्योंकि हाँ लाल अंगारा आँखें लिए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा, सर नीचे झुकाए अपना सीना बुरी तरह दब कर रहा था। रीम के जाने के बाद वो कमरे की हर चीज़ तहस-नहस कर चुका था। अंदर रिश्ता हाल तक खत्म ही नहीं हो रहा था। क्यों कर रही थी वो लड़की? अगर मोहब्बत करती थी तो मना लेती, इसे कोशिश तो करती। तुमने अच्छा नहीं किया रीम नुमान अली। अगर मोहब्बत थी तो मनाती, मुझे जताती, ज़बरदस्ती करती, चिल्लाती, पर तुम्हारा खामोश लौट जाना इस बात की वजाहत है कि तुमने मेरे साथ दिल बहलाया। हाउ कुड यू डू डू दिस टू मी? कांच का बाज दीवार पर मारते हुए गिराया था। इस वक्त वो बातमाद लड़का दोहरी जंग में मुतला था। खुद से लड़ना कैसा होता है इस वक्त हान जानता था। नो, तुम मेरे साथ खेल नहीं सकती। तुम सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नो, नेवर, कभी नहीं। वे कदम से आगे एक कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक से सीने में शदीद दर्द की लहर उठी थी। वो सीना रब करता ज़मीन पर बैठ गया था। गहरी सांस लेते वो बैठ के साइड से टेक लगाते चूर था, मुश्किल सीने को रब कर रहा था। तभी करीम कमरे में आया था और रेहान की हालत देखते चीख पड़ा था, रेहान बाबा। वो रेहान के पास बैठा, आंखों में आंसू लिए रेहान के चेहरे पर हाथ रखा था। रेहान के चेहरे पर पसीने के नन्हे-नन्हे कतरे थे। कुछ समझ ना आने पर वो कमरे से बाहर भागा था। फ़ोन निकाल कर सबसे पहले बुरहान का नंबर डायल किया था और बुरहान को सारी सूरत-ए-हाल सुनाकर वापस कमरे में आया था। देखा, रेहान साइड टेबल के दरार से कुछ दवाई निकाल रहा था। रेहान ने वो मुँह में रख कर पानी पी लिया था। कुछ देर गुज़री तो इसका जिस्म नॉर्मल होने लगा था। जिस्म नॉर्मल हुआ था, पर दिल अब तक वैसे ही बेखुद सा धड़क रहा था। लगता था कि वो सब कुछ खो देगा। कुछ बहुत दूर जा रहा है। वो खड़ा हुआ था, सर एक लम्हे को घूमा, पर अब एंटी डिप्रेशन का असर शुरू हो चुका था। रेहान बाबा, प्लीज़ आराम करें, आपकी तबीयत। अभी वो बोल ही रहा था जब रेहान ने अपनी हंकारा होती आंखों से उसे घूरा था। इसने कभी मुलाजमीन से बदतमीज़ी नहीं की थी, लेकिन ये रोब था कि करीम कमरे से बाहर निकलता चला गया था। बराते ही इसने एक मरतबा भी बुरहान को कॉल मिलाई थी और परेशानी से दोबारा सूरत-ए-हाल बताई थी। न जाने आगे से क्या हुक्म दिया गया था। वो दौड़ता हुआ गार्ड के पास पहुँच गया था। गार्ड को बरामदे शेर ने मखसूस हुक्म दिया, जिसके बाद राब्ता मुंतक़ा हो गया था। बुरहान नुमान अली से मुतल्लक़ ज़रूरी काम निपटाकर अभी घर के रास्ते में ही था जब रेहान के लिए हायर किए गए अपने ख़ास आदमी की कॉल पर वो बुरी तरह चौंका था। इसके अंदाज़े के मुताबिक इस वक़्त रीम को रेहान के पास होना चाहिए था। इसे लगा था कि ये मुलाकात शायद इनके तमाम गिले-शिकवे दूर कर दे, इन्हें फिर से एक साथ ले आएगी, मगर ये बरामदे शेर की खामख़याली साबित हुई थी। जबकि कमाल के फ़ोन रिसीव करने पर इस एयरबेस से कमाल की घबराई परेशान परेशान आवाज़ सुनाई दी थी। अच्छा, वो वहाँ पे करीम था और यहाँ पे कमाल है। ओके, बड़े साहब, रेहान बाबू को कुछ हो रहा है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, हो रही है। अल्फाज ये छोटे-छोटे धमाके जो बुरहान शेख के कानों के आस-पास हो रहे थे। इसको पर्सनल गार्ड के साथ हॉस्पिटल लेकर पहुँचो। कमाल, मैं इधर ही आ रहा हूँ। बुरहान की आवाज़ में बला की परेशानी और गुस्सा था। देश की इज़्ज़त बुरहान ने अपना माथा मसला था। वो बहुत फ़ास्ट ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में एक मरतबा फिर फ़ोन रिंग हुआ था। इस बार भी कमाल की कॉल थी। बुरहान ने घबराते हुए फ़ोन कॉल रिसीव की थी, लेकिन आगे से सुनी गई बात ने इसका दिमाग घुमा दिया था। गुस्से से जबड़े पीछे गाड़ी को ब्रेक लगा था। वो अपनी रफ़्तार कम करने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर ज़ोर से हाथ मारा था। कमाल, गार्ड को फ़ोन दो। वो मुश्किल खुद को रौन रखते बुरहान ने हुक्म दिया था, घर की कोई भी गाड़ी घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए, सारी गाड़ियाँ गायब कर दो। बुरहान ने हुक्म सद्दी करते राब्ता मुंतक़ा किया और गाड़ी स्टार्ट की थी।
तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और खुदसर हो गए हो यहाँ, तुम्हें देखकर एहसास होता है तुम मेरे भी बाप हो। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए जल्दी-बूझते घर पहुँचा। फिर गाड़ी घर से दूर पार करते हुए वो मेंशन में दाखिल हो गया था। गार्ड से मालूम हुआ था अहान अब तक बाहर नहीं आया था, इसीलिए लॉन में बैठते कमाल को बुलाया था। फरहान के हुक्म के मुताबिक इसने अहान के ड्रॉर से चुराई एंटी टैबलेट्स फरहान की हथेली पर रख दी थी। इस मेडिसिन की तस्वीर खींचकर फरहान ने अपने खास डॉक्टर को सेंड की थी। कुछ लम्हों बाद आगे से एक तवील मैसेज सेंड किया गया था, जिसे पढ़ के फरहान के पेशानी पर लाता दांत बल पड़े थे। एहान जो टैबलेट्स यूज़ करता था वो एंटी डिप्रेशन थी। वो टैबलेट्स कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नॉर्मल टैबलेट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जिसको ज़्यादा इस्तेमाल करना इंटरनल हिसाब के लिए सख्त नुकसानदेह था। और ये मेडिसिन अक्सर ड्रग डीलर्स के पास अवेलेबल हो सकती थी। ये सब पढ़कर फरहान के साथ बहुत भारी होने लगे थे। ये चीज़ कैसे इसकी इससे पोशीदा रह गई थी। वो तो ईहान की हर चीज़ पर नज़र रखता था, पर इतनी बड़ी बात इसकी इलम से ओझल कैसे रह सकती थी। दिल खौफज़दा होने लगा था। न जाने ये मेडिसिन कब से ईहान के इस्तेमाल में थी और कब किसने ये इसे मुयस्सर की थी। वो सरताम में बैठा ही था जब ईहान को बाहर निकलता देखा था। वाटर खोलते ईहान अंदर से हुडी निकालते हुए फ्रेश होने गया था। कुछ देर बाद बाहर निकल कर गाड़ी की चाबी काट और फ़ोन उठाते हुए रूम से बाहर निकला था। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए वो पोर्च में आया था। ये देखकर झटका लगा कि पोर्च में कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। व्हाट द हेल, मेरी गाड़ी कहाँ है? वो बुरी तरह दहाड़ते हुए गार्ड डरते हुए आ गया था। सर, सारी गाड़ियाँ सर्विस के लिए गई हैं। गार्ड का कहना था कि हान का हाथ घूमता इस गार्ड का गाल लाल कर गया था। वो गार्ड हैरत से हान को देखने लगा था। आज पहली बार हान ने किसी मुलाजिम पर हाथ उठाया था। वहाँ खड़े सारे मुलाजिम डर से चेहरा झुका गए थे, जबकि हान की आंखें सुर्ख हो रही थी। किसकी इजाज़त से गई है मेरी गाड़ी सर्विस के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी इजाज़त के बगैर भी हान का चिल्लाना जारी था, जब पीछे से बरामदा शेर की आवाज़ पर वो थमसा गया था। मेरे हुक्म पर गई हैं। मुझे नहीं लगता इन मुलाजमीन के लिए मेरे हुक्म के बगैर बाद तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। ठंडे ठाल लहजे में कहते हुए हान को खींचने पर मजबूर कर गया था। आपने मेरी गाड़ी क्यों सर्विस के लिए भेजी और कैसे भेजी? चाबी तो मेरे पास है। खुद पर ज़ब्त करते हुए बरान के मुकाबले आ खड़ा हुआ था। बरान ने बगौर से देखा। वो कद में इससे ऊंचा था। कल तक इसके सीने पर सरक कर सोने वाला बच्चा आज इससे ज़्यादा तवाना था। मुझे गाड़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर सर्विस की ज़रूरत लग रही है। लहजा तंजिया था। यहाँ ने कुछ कहने को लगा किया था, फिर नफ़े में सिर हिलाया था। आपसे बहस बेकार है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ मेरे मामला से दूर रहें, वरना वो धमकी देता कदम पीछे ले गया था। वरना क्या? बरान ने रूबरू सीने पर हाथ बांधते ठंडे ठाल लहजे में पूछता, वरना जवान भाई की मुर्दा शक्ल देखना शायद आपसे बर्दाश्त ना हो। वो बोलकर रुका नहीं था, बल्कि पैदल वहां से बाहर निकल गया था। पीछे बरहान ने सर झटकते गार्ड को इशारा किया तो कुछ देर बाद बाहर एक मर्सिडीज खड़ी थी। बरामदा शेर भी वहां से जा चुका था। इहान के मेंशन से निकलने के बाद वापस इसी रिक्शे में बैठी थी। वो ताबूत में आखिरी कील ठोक आई थी और इस ताबूत में अपनी मोहब्बत को दफना आई थी। घर पहुंचने पर इसने नुमान अली को अपना मुंतजिर पाया था। वो सामान पैक किए सेन में बैठे हुए थे। चले बाबा, इसका लहजा किसी भी हिसाब से आ रही थी। नुमान अली ने जांचती नजरों से अपनी बेटी को देखा था। वो समझ गए थे वो मुकम्मल हार आई थी। जिंदगी एक शख्स पर खत्म नहीं होती। रीम के मुकाबले आते हुए ससुराल लहजे में बोले तो रीम फीका सा हंसी थी। बहुत कीमती चीज़ मिली है मुझे बाबा, मैं टूटी नहीं हूँ, मजबूत हो गई हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें। फिक्र मत करें, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। वो चेहरे पर हाथ फेर के अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। नुमान अली संजीदगी से उसे देखता। कुछ लम्हों बाद वो हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर बाहर निकली थी। इसका चेहरा धुला हुआ था। चले? रीम के सवाल पर नुमान अली ने नमदीदा नजरों से उसको देखा, फिर इस बात में सर हिलाता सामान उठाकर बाहर निकल गया था। बरामदे शेर की हिदायत के मुताबिक टैक्सी उनके घर तक नहीं आई थी। ना ही उन्होंने किसी की मदद कबूल की थी, बल्कि हाथों में ज़रूरी सामान का बैग उठाकर नुमान अली चला गया था। 2-3 स्टॉप पैदल चलने के बाद वो एक कैब बुक की थी। नुमान अली ने ड्राइवर को रास्ता समझाया और वो दोनों कैब में सवार हो गए थे। टीम बाहर गुजरते रास्तों को बगौर देख रही थी। हर गुजरता रास्ता नई मंजिल के लिए करीब था। दूसरी जानब नुमान अली बरामदे शेर का एहसानमंद था। बरामदे शेर ने अपने भाई की हिमायत नहीं की थी, ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या धमकी दी थी, बल्कि इसने नुमान अली को इस मेंशन के सर्विस क्वार्टर में शिफ्ट होने का कहा था, जो बरामदा शेर का पर्सनल मेंशन था, जो शहर से कदरे दूर था और वहाँ सिर्फ बरामदा शेर का आना जाना था। यहाँ से रीम की हिफाजत की जिम्मेदारी बरामदा शेर ने ली थी, साथ रीम की शादी की जिम्मेदारी भी, कि जिससे नुमान अली रीम की शादी करना चाहेगा। फरहान उस लड़के से रीम की शादी करवा देगा या फिर खुद कोई अच्छे से लड़के का रिश्ता तलाश करेगा। कैब से 2 घंटे की मसावत तय की थी। इसके बाद वो शहर की हदूद से बाहर थे। चलो आओ बताएं हाल दिल तुम्हें गम मुतासिर है आड़े इज्जत नफ्स में। वो कैब बुक करता रीम नुमान अली के घर गया था। घर के बाहर कैब रुकते ही गाड़ी से उतरता वो झूठी घर के दरवाजे पर पहुंचा। दिल धक से रह गया था। माथे पर बड़े बड़े तने अजाब ढीले पड़ गए थे। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कुछ ताला लगा
बहुत कुछ बयान कर रहा था, ये लोग कहाँ गए हैं? सामने घर से झाँक के औरत से पूछा तो दिल में एक उम्मीद है कि शायद डॉक्टर के पास या किसी और काम से गए हों। घंटा भर पहले ही घर छोड़ के चले गए हैं। इस औरत ने मज़े लेते बताया था, हान की उड़ी रंगत देखकर इसे यही अंदाज़ा हुआ था ये जवान लड़का इसका आशिक है। कहाँ गए? सीना एक बार फिर अचानक जलने लगा था। बेख्तियार अपना सीना रब करते हान ने दीवार का सहारा लिया था। शायद इस दवा ने भी असर नहीं किया था, जो पिछले 4 दिनों से मुझसे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पता नहीं वो हमेशा के लिए चले गए हैं। पता नहीं पर वो हमेशा के लिए चले गए हैं, वापस नहीं आएँगे। इस औरत ने मज़ीद तफ़सील बताते हुए हान वहीं ज़मीन सॉरी दरवाज़े के सामने बैठ गया था। "तुम मेरे साथ नहीं खेल सकती रीनू मानाली, तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं हो सकती, तुम मेरे साथ या आंधी शेर के साथ गेम प्लान करो। यानी तुम सब प्लान करके घर आई थी, जान भागने की पूरी तैयारी थी, मैं यूँ ही तुम्हारे आगे घुटने टेकता और झुक जाता, तुम मुझे गिराकर भाग जाती, इस मकसद से आई थी तुम, ताकि मेरी हैसियत दिखाकर भाग जाओ।" अपने दिल के मकाम को मुट्ठी में दबाते वो तंज़ी हँसा था। "तुम्हें ये खेल बहुत महँगा पड़ेगा।" आँखों में नमी उतरने लगी थी। वो सख्त नफ़रत महसूस कर रहा था इस लम्हा जब अपने वजूद से और इस दिल से जो इतना सब कुछ होने के बावजूद रीमू मालाली के लिए तड़प रहा था। दिल को निकाल कर बक फेंक दे। जेब से फ़ोन निकालते इसने ज़िया का नंबर डायल किया और चेहरा माथा घुटनों पर टिका दिया था। चंद मिनट के बाद ज़िया ने कॉल रिसीव की थी। "मेरे सीने में जलन हो रही है ज़िया।" ईहान के लहजे में दर्द महसूस करते ज़िया चौंका था। "तुम इस वक़्त कहाँ हो ईहान?" ज़िया ने परेशानी से पूछा था। "रीम के घर के बाहर।" शी वॉज़ प्लेइंग विद मी। ईहान के आगे आगे भी कुछ कह रहा था पर राब्ता मुंतक़ा हो चुका था। "महरू तुम्हारी परछाई कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी।" वो खुद अज़ियती से मुस्कुराया था, लेकिन फिर सीने में बढ़ती जलन बढ़ती गई थी और आँखें बंद होने लगी थीं। वो यूँ ही घुटने पर सर रखे और वो यूँ ही घुटने पर सर रखे होश को बैठ हो चुका था। मोहल्ले के लोग जमा होते दूर से इस अमीरज़ादे को देखने लगे थे, जिसे रात ही यहाँ देखा था। कुछ देर बाद वहाँ एक और गाड़ी रुकी थी और अंदर से एक और हसीन जवान लड़का बाहर निकला था। वो ज़्यादातर था। शिट! ईहान के होश वजूद को वहाँ मौजूद आदमियों की मदद से गाड़ी की पिछली सीट पर डालते वो गाड़ी वहाँ से हॉस्पिटल की जानब ले गया था और रास्ते में परेशानी से फरहान ने शेर को कॉल करके मुतला कर दिया था। फरहान जिस वक़्त हॉस्पिटल पहुँचा, ईहान को इमरजेंसी ले जाया जा चुका था। मामला चूँकि मशहूर बिज़नेस टाइकून फरहान शेर का था, ईहान को हॉस्पिटल में हाथों हाथ लिया गया था। वो बेचैनी से इमरजेंसी के बाहर इधर से उधर चक्कर लगाता रहा था। तभी हॉस्पिटल में ज़ैन और मोहल्क भी चले आए थे। फरहान ने इनसे भी एक-एक डिटेल उगलवाई थी, जिनके परेशान हाल चेहरे बता रहे थे कि ईहान उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। "मुझे डिटेल बताओ, क्या हुआ था? कौन सी मेडिसिन ईहान के इस्तेमाल में थी और ये इसे मिली कहाँ से?" वो तीनों पर बुरी तरह धरा ही था। जो बुत बने खड़े थे कि वो खुद हैरान और परेशान थे कि हाँ, ऐसी कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकता है। "भाई, हमें इस मतलब कुछ भी इल्म नहीं है।" ज़ैनब अफसरदा लहजे में कहा था। "कमाल, तुम कुछ बोलो।" अब की बार वो कमाल पर धाड़ा तो कमाल फ़ौरन सारा वाक़या दोबारा बयान करने लगा था। "सरवन मान अली की बेटी आई थी, ईहान बाबा के कमरे में इनसे बात करने गई थी, मगर फिर कुछ ही देर बाद तकरीबन भागते हुए इनके कमरे से बाहर निकली थी। ईहान बाबा इसे आवाज़ें देते रहे थे, मगर वो रुकी नहीं थी और चली गई थी। यूँ लगता था ईहान बाबा से बहुत बुरी तरह खफ़ा होकर गई है।" कमाल ने तफ़सील बताते बयान और वहाँ मौजूद हर शख़्स को इनकी मुलाकात का तकरीबन तमाम सियाक़-व-सबाक़ समझ आ गया था। "मैं इस मुलाकात की किसी कहानी नहीं जानना चाहता। मुझे ये बताओ कि ईहान कब से ये बिल यूज़ कर रहा है? ईहान की निगरानी के लिए रखा था ना? अब एक चीज़ की खबर देनी थी, तो ये पिल्स की खबर क्यों नहीं दी थी?" अब की बार फरहान बुरी तरह भड़का था। कमाल अपनी नाअहली पर सर झुका गया था। फरहान जानता था इसका भाई ज़िद्दी था, मगर ये अंदाज़ा अब हुआ था कि इस ज़िद के चलते महज़ अपनी छोटी अना की तस्कीन की खातिर इसके भाई ने एक मासूम बेज़र्रा लड़की के सच्चे और खरे जज़्बों को रौंद डाला है और फिर इस लड़की को बर्बाद करने के साथ खुद को भी बखूबी बर्बाद किया था। फरहान दिलशेर को नुमान अली और उसकी बेटी के मुतल्लिक़ अपना किया गया एक-एक फ़ैसला दुरुस्त और इंसाफ़ पर मुबनी लगा था। ईहान की महरूमी और ज़िद व अना की भेंट वो नुमान अली की बेटी को नहीं चढ़ा सकता था। रहा ईहान को अब इस सब को भी जो मसला दरपेश था, वो इसे अपने तरीके से हैंडल करने वाला था। वो इसी सोच में गुम था जब इमरजेंसी का दरवाज़ा खोल कर डॉक्टर बाहर आया था। ईहान दिलशेर को सामने देखकर वो इसके सामने आया था। "डॉक्टर" फरहान दिलशेर ने डॉक्टर को मुखातिब किया, मगर इससे पहले ही डॉक्टर ने ईहान के मुतल्लिक़ तफ़सील बताने के लिए रूम में बुलाया था। फरहान डॉक्टर के पीछे रूम में गया तो फरहान के बैठते ही डॉक्टर ने तफ़सील से बताना शुरू किया था। "आपके भाई का बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ था। एंटी-बायो 60 60 ओके। और ये बहुत ज़्यादा हाई था और ये बहुत ज़्यादा हाई था। मेरा ख़्याल है 3-4 दिन से आपके भाई बेतहाशा डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार थे। उनके साथ को पुरसुकून रखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। बड़ी मुश्किल से बीपी कंट्रोल करके अब सुकून आवर इंजेक्शन दिया है, आराम के लिए बेहद ज़रूरी है। तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद होश आ जाएगा।" लेकिन डॉक्टर के लिए बरहान बेचैन हुआ था। "लेकिन क्या?" फरहान ने परेशानी से पूछा था। "लेकिन ये कि मुझे लगता है ईहान कुछ हैवी ड्रग्स आई मीन इसकी बॉडी मुझे नॉर्मल नहीं लग रही।" फरहान "मैंने चेकअप किया है इस दौरान इसके सीने और बाकी कुछ असाब पर सूजन देखी है। कुछ रेडिश
जैसे किसी एलर्जी के। मुझे शक है वो डिप्रेशन से बचने के लिए ड्रग से। डॉक्टर बुरहान के तासरात देखते बहुत मुनासिब अल्फाज में कह रहा था, जबकि बुरहान का चेहरा तरीक हुआ था। मैं ये कन्फर्म नहीं कह रहा, मैंने कुछ ज़रूरी टेस्ट किए हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। अभी डॉक्टर बोल ही रहा था जब बुरहान ने वो पिल्स की छोटी सी बोतल डॉक्टर के सामने रखी। डॉक्टर चंद लम्हों के लिए चौंकते, फिर इसकी पिल्स को गौर देखने लगा। तो ओ माय गॉड, हाँ ये यूज़ कर रहा है। किस डॉक्टर ने इसे ये दी पिल्स? आई गैस ये कोई डॉक्टर दे ही नहीं सकता, ये तो यहाँ को जहनी मजबूर कर सकती है। इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा। तो बरहान को खुद पर जब्त करना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने उसकी कैफियत देखते गहरी सांस ली थी। डोंट वरी बरहान, आई एम श्योर इसे ये पिल्स यूज़ करते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, क्योंकि बाजार कोई लो सामने नहीं आ रहा। मैं फिर भी इसका मुकम्मल चेकअप करता हूँ, जो बेहतर हो सके वो करता हूँ। अभी इसे कोई खतरा नहीं है, पर इसकी मेडिसिन से इसकी पहुँच से बहुत दूर कर दो। जवान है, खून गर्म है और ज़िद्दी है। ऐसे में अपनी जान की परवाह अक्सर लड़कों को नहीं होती। इसे सिर्फ ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बरहान को हौसला दिया था। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तफसील बताते तसल्ली दी थी। बरहान ने सूखा सांस लिया। डॉक्टर जा चुका था। बरहान के पास अंदर रूम में चला आया था। ज़िया, ज़ैन और मोलक भी इसे देखकर बाहर जा चुके थे। इसके राह में खलना वाक़या हो, किसके राह में खलना वाक़या हो। अंदर अब बरहान बेड के पास पूरी चेयर पर बैठकर इसका खूबसूरत चेहरा देखे गया था। बरहान शेर को समझ ना आया कि हान की ये हालत क्यों और किस वजह से हुई है। इसने जानबूझकर उस लड़की से लड़ाई झगड़ा करते से खुद से दूर किया था। तो अब इसका यूँ टूट कर बिखर जाना क्या मानी रखता था। वो तकरीबन 1 घंटा यहाँ के पास रहा था, फिर मगर घर से आई इनियारा के फ़ोन कॉल ने इसे मज़ीद डिस्टर्ब किया। जब पता चला कि एलिफ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तब बरहान को यहाँ के पास या और ज़ैन और मुल्लों को छोड़कर घर जाना पड़ा था। सुनो, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा। मेरी रूह की गहराइयों में उतर गई हो तुम, दिल के नहा खानों में बस गई हो। मत छोड़कर जाओ मुझे। तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद इसने आहिस्तगी से अपनी आँखें खोली। वो एक अज़ियत भरी ख्वाब के ज़ेर असर था। कई लम्हों तक तो गायब दिमागी आलम में अपना हाफ वाइट सीलिंग लगी छत को घूरता रहा। मगर जब शऊर की सीढ़ी पर कदम रखते पूरी तरह होशो-हवास कायम हुए थे, एक मर्तबा फिर से कनपटियों में छोटे-छोटे धमाके होने लगे थे। वह उस झटके से बेड पर उठ बैठा था। यहाँ इसे देखते इसके हाथ में डिप्का के नोरा लगा हुआ था और वो इस वक्त हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में मौजूद था। इसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इसके दिल और दिमाग में इस वक्त दूसरी चीज़ कोई चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ एक वजूद था जिसकी सोच का महवर बन गया था। इसका इहान को इस तरह बगैर कोई सवाल जवाब के छोड़कर जाना। और अब ये ख्वाब इहान ने आहिस्तगी से अपने हाथ से कनोला की नीडल खींची थी। वो बेड से उतरा और अपने शूज़ पहनकर रूम से बाहर निकला था। सामने वो तीनों बैठे आपस में मसरूफ़ थे। इहान को अपने हाथ हाथ पर अंगूठे के दबाव से अपना खून रोकते इत्मीनान से बाहर आते देखकर अपनी जगह पर ठिठक गए थे। ज़िया, अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल दो मुझे। इहान ज़िया के रूबरू आया था और सर सपाट बेतासुर चेहरा लिए इसकी इस डिमांड पर ज़िया अपने जबड़े भींच के रह गया था। ज़ैन और मोहल्ला ने भी अचंभे से उसे देखा था। यहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप अंदर चलो और जाकर बेड पर लेटो। ज़िया ने इसे झिड़का था। मैंने कहा ज़िया, अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल दो मुझे। क्यों, किस लिए? ज़िया ने गुस्से से पूछा। तुम जानते हो क्यों? तो पूछ कर टाइम वेस्ट मत करो ज़िया। यहाँ ने बेतासुर लहजे में कहा था। मैंने कहा था यहाँ राख से मत खेलो, जल जाओगे। ज़िया ने अफसोस भरे लहजे में कहा था। अब तो जलकर राख हो चुका हूँ ज़िया, और इस आग के लपेट में आकर अब इससे भी जलना पड़ेगा। वो जुनून तेजी से बोला था। यहाँ ये क्या पागलपन है? ज़िया को वो हकीकत में पागल लगा था। ज़िया, मेरा दम घुट जाएगा यहाँ, मुझे गाड़ी की चाबी दे दो। वो सर्द मोहरे से घुराया था। ज़िया को अपने पॉकेट से फ़ोन और गाड़ी की चाबी निकाल कर इसे थमानी पड़ी थी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बहुत तेज़ी से लंबे लंबे डंक पड़ता हॉस्पिटल से बाहर निकला था। ज़िया इसके हम कदम हुआ था। नो, हरगिज़ नहीं, मुझे हर हाल में इसे ढूंढना है ज़िया। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसे मेरे पास लौटना पड़ेगा किसी भी हाल में। भाग कर क्या समझती है, मुझसे दूर चली जाएगी तो हाँ शेर ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो जहाँ भी होगी मैं इसे ढूंढ लूँगा। वो मुश्तिल साया अल्फाज अदा करता जन से गाड़ी वहाँ से निकाल के ले गया था। ज़िया वहाँ अकेला था। तभी अंदर से ज़ैन और मोहल्ला भी बाहर आ गए थे, जबकि बुरान शेर से अपनी शामत आने पर तमाम गार्ड्स भी बौखला गए थे और अपनी गाड़ियों में फ़ौरन उसके पीछे ही निकले थे। बुरहान घर का परहेजी हल्का पुल्ला खाना लिए है। हॉस्पिटल के दूसरे गेट से अंदर आया था। वो वार्ड नंबर 9 के कमरा नंबर 4 में आया तो खाली बैठ कर देख पहुँच कर रह गया था। इहान बरामदे शहर की शेर जैसी धाड़ पूरे हॉस्पिटल में गूंजी थी। तभी वहाँ ज़िया चला आया था, जो बुरहान के इंतजार में भी हॉस्पिटल में ही रुका हुआ था। ज़िया, इहान किधर है? बरामदे शेर गुराया था। वो भाई, वो नुमान अली को ढूंढने। ज़िया ने शराफत से इसे सच बताया था। तो बरामदे शेर का दिल किया अपना सर दीवार पर दे मारे। तुमने इसे जाने को दिया ज़िया? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बरान ने दांत पीसते कहते तेज़ी से अपने कदम बाहर के जाना बढ़ाए थे। डॉक्टर ने कहा था इसे आराम की ज़रूरत है, मजीद स्ट्रेस या डिप्रेशन इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बीपी शूट होने का खतरा था, मगर वो किसी भी चीज़ की
परवाह किए बगैर चला गया था। बरहान इसके मामले में बेहद परेशान हुआ था। ज़िया भी इसके पीछे लपका था, वो बहुत ज़िद्दी हो रहा था भाई, इसने कोई बात नहीं सुनी। ज़िया ने कहा और ज़िया ने कहा और बरामदे शेर के साथ ही वहाँ से निकल आया था। रेहान काफ़ी रैश ड्राइविंग करते एक बार फिर रीम के मोहल्ले पहुँचा था। गार्ड की मदद से हर फर्द से जिसका ताल्लुक नुमान अली से था, इससे नुमान अली की मतलब हर छोटी बड़ी तफसील मालूम की थी। बाकी पैसे मुँह में रखते लोगों की ज़ुबान भी खूब बंद की थी, और वो जो कुछ रीम और नुमान के मतलब रीम और नुमान अली के मतलब जानते थे, सब कुछ रेहान की गोश-गुज़ार कर चुके थे। जब बरामदे शेर के महान की खबर रेहान को मालूम हुई तो इसे एहसास हुआ कि ये मामला अब मज़ीद उलझ गया है। अगर बरामदे शेर इसमें शामिल था तो वो जानता था वो बरामदे शेर से नहीं जीत सकता था। अगले दिन वो सुबह गहरी नींद से जागे तो सुबह 11 बज रहे थे, कमरा खाली था। उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगा के रात वो ज़ावेर खानज़ादा के सीने पर सोई थी। ये सोच ही दिल को अजीब तरह से तड़का रही थी। जब अपने तमाम डर को वो अशाती शख्स के हवाले कर दिए थे, फिर इसका खुद पर पूरी तरह एतमाद जताता रद्द-ए-अमल ज़मीश को जैसे कि नई ज़िंदगी बख्श गया था। इसलिए अब जब तमाम ख़दशात दूर हुए थे, तो अपने पाँव नरम क़लीन पर रखते इसे पहली बार एहसास हुआ था कि अपने अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते इसे क्या कुछ नवाज़ दिया गया था। अपने सब्र, हिम्मत और इस्तिक़लाल के बदले इसे कितनी बेशुमार नेमतों से नवाज़ा गया था। एक नज़र इस आलीशान कमरे को देखा तो एहसास हुआ वो क्या कुछ पा चुकी थी। इसके रब ने इसकी तकलीफ़ों के बदले क्या कुछ नवाज़ दिया था। आँखें यकदम नम हुई थीं, वो लब दबाकर मुस्कुराने लगी थी। कमरे में खड़ी होकर कमरे की हर चीज़ को कमरे में खड़ी होकर घूमी थी। कमरे की हर चीज़ खूबसूरत थी, बिल्कुल इसके यहाँ अच्छा यहाँ पे खड़े होके ओके। कमरे की हर चीज़ खूबसूरत थी, बिल्कुल इसके ख्वाबों की तरह। पर आज से पहले कभी यह सीन नहीं लगा था, क्योंकि पहले वो खुश नहीं थी। इस खूबसूरत जगह पर वो पहले खुद को गुलाम या बांदी महसूस करती थी। लेकिन अब हाँ, वो शख्स इससे मोतबर कर चुका था, ज़ावेर खानज़ादा। मिसेज़ ज़ावेर खानज़ादा, अपने नाम के आगे इसका नाम कितना हसीन लगा था। खुद से शर्माते इसने वार्डरोब खोली थी और एक खिलते हुए रंग का लिबास निकाल कर फ्रेश होने चली गई थी। जब बाहर निकली तो बाल नम थे और चेहरे पर भी नमी थी। गहरे जामुनी रंग में खुद को गुलाब की तरह खिलता रंग देखा तो चंद पल के लिए खुद ही में पूत रह गई थी। ये रंग इस पर बड़ा जच रहा था। ये रंग लिबास का नहीं बल्कि ज़ावेर खानज़ादा की मोहब्बत का था, जो खुद से शर्माती रूम से बाहर निकली और इस आलीशान महनुमा घर को बगौर देखने लगी थी। आज से पहले कभी ये घर इतना हसीन नहीं लगा था, बल्कि सिर्फ एक कैद खाना लगता था। लॉन्च में ही इसे महमल मिली जो इसके वजूद से चिमट गई थी। महमल पर भी आज इसे टूट कर प्यार और वो इसे अपने बहुत ज़्यादा करीब लगी थी। महबूब तो वो इसे पहले दिन से थी, पर आज मोहब्बत भी बहुत हसीन लग रही थी। पूरा दिन इसका हसीन गुजरा था। शुक्र था कि दोबारा इसने इब्रार की शक्ल नहीं देखी थी कि इब्रार को ज़ावेर ने निकाल दिया होगा। रात वो ज़ावेर की मुंतज़िर थी, पर ज़ावेर की तरफ से इसे मैसेज मिला था कि आज वो रात घर नहीं आएगा, ज़रूरी काम से शहर के बाहर जा रहा है। ये सुनकर इसका दिल उदास हुआ था, पर खुद को समझा बुझा कर महमल में गुम करने की नाकाम कोशिश की थी। पर वो क्या करती, मजबूर थी। दिल के हाथों जो मुस्तकिल ज़ावियार खानज़ादा को सोच रहा था, साथ ही इस लम्हे को खोज रहा था जब इसने ज़ावेर को तकलीफ़ दी थी। रात देर तक ज़ावेर के मुतल्लिक़ सोई थी, वो नींद की वादी में उतर चुकी थी। आज इस शख्स की अपने पहलू में गैर मौजूदगी ने ज़रमिश को बुरी तरह झुंझलाहट से दो चार किया था। बड़ी मुश्किल से करवटें बदल बदल कर नींद आई थी, लेकिन जब अगले दिन इसकी आँख खुली तो ये सुबह ज़िंदगी की रोशनी और खूबसूरत तरीन सुबह थी। ढीली सी टी शर्ट ट्राउज़र में अपने पहलू में बहुत नज़दीक इसने अपने ख्वाबों के शहज़ादे इस यूनानी देवता ज़ावेर खानज़ादा को देखा था। वो इसके नज़दीक था। ज़रमिश का दिल कानों में मचल उठा था और दिल उछल कर हलक में आया था। एहतियात से दामन बचाते वो बेड से उठी और डर था कि वो कहीं जाग न जाए। आज डर खौफ नहीं बल्कि बेपनाह शर्मो झिझक थी जो आड़े आ रही थी। वो वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाते, लेकिन फिर ज़ावेर के नींद से जाग जाने का सोचकर उल्टे कदम वो कमरे से बाहर निकल गई थी। ज़रमिश के बाहर निकले ज़ावेर ने अपनी आँखें खोली थी। मेरी शेरनी भीगी बिल्ली बनती जा रही है, इलाज करना पड़ेगा। मुस्कुराकर कन्वर्टर परे करते हुए उठ कर खड़ा हुआ था और वॉशरूम में फ्रेश होने की गर्ज से चला गया था। वो डार्क ब्लू ट्राउज़र और ब्लैक सैंडो पहने गीले बालों में हाथ फेरता डाइनिंग हॉल में आया था, जहाँ वो सुर्ख सादा से सूट में इनहमाक से खाना खा रही थी। इसके पास बैठी महमूद ज़रमिश के हाथ का बना सैंडविच मज़े ले लेकर खा रही थी। वो आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठा था। डैडी एक बात पूछूं? महमूद ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा था। ज़ावेर ने हाफ फ्राई एग प्लेट में निकालते हंकारा भरा था। मम्मा आपसे नाराज़ हैं? सादा सिल्फास सवाल पर ज़ावेर और ज़रमिश की निगाहें पल भर को चार हुई थी। नहीं तो आप क्यों पूछ रही हैं प्रिंसेस? चौंकती तो ज़रमिश भी थी। वो मम्मा कह रही थी डैड को छोड़ वहम अकेले
छोड़ो, हम अकेले नाश्ता करेंगे। तुम्हारे डैडी वैसे भी जीने हैं। महमल की बात पर जरमीश को पानी पीते हुए लगा था। महमल ने हंसते हुए होठों पर नन्हे हाथ रखे जबकि जाविर ने बुरुज खाते हुए जरमीश को देखा था। जरमीश ने जाविर की जन्म देखने से मुकम्मल गुरेज पड़ता था। सही कहती हैं आपकी मम्मा, मैं जीनी हूँ और बहुत जल्द आपकी मम्मा को खा जाऊंगा। इसने नाश्ते से हाथ खींचते बाजार संजीदगी से कहा था। जरमीश पैर बदल के बहुत मुश्किल चौर नजरों से जाविर को देखने लगी थी कि बात उसने संजीदगी से कही थी, मगर इसकी इन शोक बेबाक निगाहों की लपक अब एक अजीब से तलब और मानी खींची थी जो जरमीश को पहलू बदलने पर मजबूर कर गई थी। एक और सवाल पूछो डैडी, महमल ने दोबारा पूछा था। नो, नाश्ता करो पहले, वरना आपके सवालात की वजह से आपकी मम्मा नाश्ता हलक से नहीं उतरेगा। आपकी मम्मा का नाश्ता हलक से नहीं उतरेगा। बाजार संजीदगी से खुफ्त सा तंज किया था। बस एक और क्वेश्चन डैडी, महमल ने मस्कीन सी शक्ल बनाई थी। पूछो। जाविर ने दांतों तले लब दबाया था। यकीनन अभी वो माँ के सर पर कोई बम फोड़ने वाली थी। आप लोग हॉस्पिटल जाकर मेरी सिस्टर का बुलाएंगे। मैं जब से मामा मैं जब से मामा आई हैं तब से वेट कर रही हूँ। इतनी बार कहा है आपको मेरी सिस्टर ला दें। मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। मेरी सिस्टर आएगी तो मैं उसके साथ खेलूंगी। मैं बड़ी इत्मीनान से अपनी फरमाइश बयान कर गई थी। जबकि जरमीश के लाल बहू का चेहरे से जाविर की निगाहें हट नहीं रही थी। अल्लाह ताला से दुआ करें ना कि अल्लाह ताला आपको सिस्टर देते। जाविर ने बाजार संजीदगी से कहा था, मगर सामने वाली की पतली होती हालत पर दिल कर रहा था कि कह के लगाए, मगर वो संजीदा रहा और फिर नाश्ते की जाना मुतवज्जा हो गया था। महमद जरमीश के कमरे में दाखिल हुई तो महमल के साथ एक मुलाजमा थी जो बड़ा सा बॉक्स हाथ में पकड़े हुए थी। क्या बात है महमल, ये सब क्या है? जरमीश ने हैरत से पूछा था। मम्मा डैडी का फ़ोन आया था कि आपको उनके साथ पार्टी में जाना है, इसलिए उन्होंने आपका ड्रेस और चीज़ें भेजी हैं। महमल के इत्मीनान से कहने पर जरमीश ने कोई ना करने का बहाना गढ़ने को मुंह खोला ही था कि महमल जल्दी से बोली थी, मम्मा डोंट वरी, आपकी प्रिंसेस ने डिनर कर लिया है जरमीश के बगैर ही, और अब मैं फोजिया आप ही मुलाजमत से स्टोरी सुनकर सो जाऊंगी। आप बस जल्दी से रेडी हो जाए। ये कहते महमल के मासूम चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान थी। अभी शाम ही तो इसने घर के लैंडलाइन से अपने डैडी को कॉल करके कहा था कि वो आज रात जावियर और जरमीश के साथ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। एक तो जावियर घर जल्दी आ जाए और दूसरा इसकी मम्मा को अपनी पसंद का कोई न्यू ड्रेस भेजे। इससे जावियर ने शायद ऑनलाइन ऑर्डर करके ये सामान ड्राइवर के हाथ में घर भिजवा दिया था। लेकिन महमद आप अकेली। जरमीश को याद आया सुबह जाविर जरमीश से ये बात किए बगैर ऑफिस चला गया था। शायद वो इसकी शर्मो हया को अब भी इसका गुरेज गिरदानता नाराज था। जरमीश ने कहना चाहा था, मगर महमल ने इसकी एक न सुनी थी और इससे शोर मचा कर आखिरकार तैयार करवा ही दिया था। बॉक्स में से नीले रंग की साड़ी निकली थी जिसकी चोली और बॉर्डर पर सिल्वर स्टोन का हल्का सा काम था, साथ वाइट गोल्ड की सिल्वर कलर की हल्की फुल्की ज्वेलरी और ब्लू सैंडल। जरमीश कम अज़ कम जाविर के साथ इस हालत में कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। वो इस सूरत में जब वो इसके बढ़ते मुसलसल जज्बात और शिद्दत से अच्छी तरह वाकिफ़ और खौफज़दा थी, मगर महमल के शोर मचाने पर वो अब हल्का फुल्का तैयार होकर सैंडल पहन रही थी। यह वही लम्हा था जब जाविर ऑफिस से आकर कमरे में दाखिल हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुआ ज़रूर था, मगर दरवाजे पर ही जैसे बतरखा हो गया था। वो महबूब सा दुनिया बुलाए सांस तक रुके उस हुसन की मूरत को देखे गया था। कुंदन बदन नीले रंग के में चांदी की तरह दमक रहा था। सुनहरी बाल आबशार की तरह कमरों पर बिखरे हुए थे। कांसी आंखें झुकी हुई थी जिन पर घनेरी स्याह बल्कि सैफगन थी। इस अप्सरा को देखकर जैसे वो अपने होश उड़ा बैठा था। खुद पर नजर की तपश महसूस कर जरमीश ने सर उठाकर सामने देखा तो बुरी तरह गड़बड़ाई थी। महमल ने भी पीछे मुड़कर देखा था। डैडी, महमल ने कहा तो जाविया ने वो मुश्किल इस पर से निगाह हटाकर अपने तमाम तर तवज्जो महमल के जानब बूझल करवाई थी। मम्मा रेडी है महमल, आप क्यों नहीं रेडी हुई? जाविया ने इसे गोद में उठाया था तो महमल ने अपने छोटे छोटे हाथों से जाविया का चेहरा थमा। आई एम सॉरी डैडी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला। मेरी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी नहीं है, वो कहते जरमीश की जाना मुड़ी। और मम्मा, आपने किसी पार्टी में नहीं जाना, वो कहते शरारत से मुस्कुराई थी। जाविया ने मुँह चुकाई थी। डैडी, मैं चाहती हूँ आप और मम्मा डिनर पर जाएँ और पैचअप कर लें। मैं जानती हूँ आप दोनों नाराज़ हैं। पैचअप करेंगे तो हॉस्पिटल जाकर मेरी सिस्टर ले आएंगे, है ना? वो मासूमियत से अपने सारे प्लान बता रही। जरमीश ने इसकी बात पर पहलू बदला क्योंकि जावियर खानज़ादा की गहरी नज़रें इसी पर मरकूज थी। झूठ बोलना अच्छी बात तो नहीं है। प्रिंसेस जावियर ने इसके गाल पर प्यार करते तनवीर की थी। तवज्जो का मरकज़ अब भी वही रगे जहाँ थी जो इससे दामन बचाने की सोच जतन किया करती थी। डैडी, आप लोग जाएंगे ना डिनर पर? महमल ने बड़ी आस से पूछा था, डर तक के कहीं बना बनाया प्लान फेल ना हो जाए। नो प्रिंसेस, जावियर ने इत्मीनान से कहा था। मोहलक कब तक आएगा? ज़िया और ज़ैन एक कैफ़े में बैठे हुए थे। एहान को लाख कॉल के बावजूद इसकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था और वो इनका इरादा था कि वो तीनों मिलकर एहान के मतलब कुछ ज़रूरी डिस्कस करते इसकी हर प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। नहीं, मोहलक फ़िलहाल नहीं आएगा। ज़ैन ने बेरे को चाय का ऑर्डर देते सिगरेट लगाई थी। क्यों नहीं आएगा? ज़ैन को न जाने का तजस्सुस हुआ। नहीं पता, तुम्हें नहीं पता? ज़िया का अंदाज इस जाइए था। ज़ैन ने समझी से उसे देखा था। मुझे कैसे मालूम होगा, इसने मुझे बताया थोड़ी है। चिढ़ते हुए कहा,
यूँ भी वो आजकल वो मुल्क से खामखा ही चिढ़ा था, तुम्हारे ही घर क्या है तुम्हें ही मालूम नहीं है। स्ट्रेंज, वेटर ने चाय के कप टेबल पर रखे तो ज़िया ने एक कप उठा लिया था। व्हाट, मेरे घर पर क्यों? मैं तो यहाँ हूँ। ज़ैन को याद नापसंदीदा और सुलगते हुए एहसास ने घेरा था। बोला किसके घर क्या कर रहा था? काम डाउन ज़ैन, और इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे ही घर क्या है? इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? ज़ैन की बेचैनी नोट करते समझ ज़िया उसके बेचारे की बखूबी समझ रहा था, और इस वक़्त अंदर ही अंदर खोल रहा था। अजीब पागल दोस्त मिले थे जो चाहते थे वो भी जो चाहते थे वो नहीं भी चाहते थे। उनका हिसाब तो वो हो गया था कि अपने बाल खुद ही नोच रहे थे या अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारे थे। नहीं यार, मैं हाइपर नहीं हो रहा, बट इसने मुझे बताया नहीं वो घर गया है, वरना मैं इसके लिए वेट कर लेता। वो मुझकी चाय का एक सिप हालाँकि मैं उतारते धीमे लहजे में कहा, पर वो वहाँ के क्यों गया है? ज़ैन ने पहलू बदलते हुए फिर पूछा था। शायद किसी काम से तुम्हारी मॉम ने बुलाया था। ज़ैन ने कंधे झुकाते तो ज़ैन शायद तुम्हारी बुलाया था। ज़िया ने कदम चुकाए तो ज़ैन के साहब कुछ लम्हों के लिए ढीले पड़ गए थे, लेकिन इसकी बात या की अगली बात ज़ैन को जैसे सरता पैर सुलगा गई थी। इससे लगा था इसकी रगों में लावा बह रहा है। मुझे लगता है सर वो तुम्हारी मॉम के बुलाने पर गया है, पर इसका इंटरेस्ट शहर में है। सच अ ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस गर्ल, मासूम भी है। आई थी मुलहक फीलिंग्स फील्स समथिंग स्पेशल फॉर हर। ज़िया ने बहुत ही इत्मीनान से ज़ैन का इत्मीनान कर दिया था। मैं घर जा रहा हूँ। बेनतहा गुस्से से दांत पीसते गाड़ी की चाबी उठाते वो बगैर ज़िया की मज़ीद कोई बात सुने वहाँ से निकल गया था। ज़िया ने गहरी सांस भरते जाएगा कपड़े मुँह से लगाया था। सारे के सारे दोस्त उल्लू के पट्टे मिले थे। फिर मुस्कुराकर इसने फ़ोन बाहर निकाला और नूरीन की तस्वीर देखने लगा। इस दिन के बाद से नूरीन और वो दोबारा करीब नहीं आए थे। 3 दिन पहले नूरीन पेपर की तैयारी किए बगैर उसकी इजाज़त के अपने मैके चली गई थी। और इंतहा तो ये थी कि इसने ज़िया से फ़ोन पर राब्ता भी नहीं किया था। वो नाराज़ था, बेशक वो हम उम्र थे। ज़िया ने इसे अपनी पलकों पर बिठाया था, पर वो भी तो इज़्ज़त डिज़र्व करता था। जाना है कहता था जो इनकी तरफ से जाना ज़रूरी थी, और अब इसके दरमियान इतना कुछ आगे बढ़ जाने के बाद इसका ये गुरेज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इसलिए ज़िया ने खुद को इसके इसके सर करने के बजाय इसे स्पेस देने को ही फ़ैसला किया था, पर इस बार फ़ैसला मुसल्लत नहीं किया था। वो मुश्किल सा गुस्से से ड्राइव करते घर पहुंचा था। इस वक्त रात के 7 बज रहे थे। मोलक इसके घर पर क्या कर रहा था वो भी इसे बताए बगैर लाउंज में दाखिल होते इसके माँ बाप अकेले बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसके कान में महज अपने बाप का जुमला पड़ा था। मोलक शरीफ लड़का है, न जाने क्यों पहली बार अपने दोस्त की तारीफ इतनी बुरी तरह चुभी थी, लेकिन मोलक को यहाँ मौजूद न पाकर इत्मीनान हुआ था। खैरियत ज़ैन अभी कुछ देर पहले गए थे, आज जल्दी वापसी होगी। लिहाज साहब ने नरमी से पूछा तो मुस्कुराता हुआ वो वहीं उनके पास ही बैठ गया। बस ऐसे ही सोचा कुछ वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। वैसे भी आज आप लोगों की पटाखा छोटा फितना दिल में कहा नज़र नहीं आ रहा। सोफे से पुष्टि लगाते पर लापरवाही से पूछा। इसके पूछने में लिहाज साहब और मिसेस लिहाज ने एक दूसरे को देखा था। वो मोहल्ले के साथ बाहर गई। उन्होंने जितने सुकून से बोला था उतना ही ज़ैन को दचका लगा था। चेहरे से बनानो सुकून पल में गायब हुआ था। इस वक्त इतनी रात को आपने इसे मोहल्ले के साथ भेज दिया, पर क्यों, किस लिए? इसका लहजा खुद ब खुद सख्त हुआ था। इलियास साहब के माथे पर बल पड़ा था। क्या मतलब? मतलब समझो तुम्हारी बात का मुकम्मल ज़ैन की तरफ मुड़ते उन्होंने कड़क लहजे में पूछा था। मतलब साफ़ है डैडी, आपसे साफ आवाज़ में पूछ रहा हूँ, आपने इतनी रात को इसे मोला के साथ के लिए क्यों भेजा? वो भी इन्हीं के अंदाज में सुलग कर बोला था। उसके कोर्स की बुक लेने, इसका एडमिशन करवाया है तो ज़रूरी किताबें और सामान लेने भेजा है। इनका जवाब सुनकर ज़ैन का दिल के अपना सर दीवार पर दे मारे। तो आखिर का मोहल्ला के साथ क्यों भेजा है? किसी ड्राइवर के साथ क्यों नहीं भेजा? ज़ैन के माथे के बल गहरे हुए थे, पर मुकाबले भी उसके बाप था। ड्राइवर को क्या मालूम क्या सामान ज़रूरी होता है? वैसे भी वो मोहल्ले के साथ ईजी और कम्फर्टेबल रहती है, तो इसमें इतना इशू क्रिएट करने वाली कौन सी बात है? आपकी बार ज़ैन की माँ ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। ज़ैन को अपने बाप के साथ इसका ये लहजा उन्हें एक आँख नहीं पाया था। तो मैं मर तो नहीं गया था, आप मुझे बोल देती यार, एक अनजान लड़के के साथ इसे बाहर भेज दिया। अब की बार सख्त झुंझलाया, ज़्यादा झटपटाया। वो दोनों चौंक कर उसका बेवजह गुस्सा देखने लगे थे। तुमने खुद मना किया था ज़ैन के तुम्हारे पास वक़्त नहीं है, और रही बात मोला की, तो वो अनजान नहीं है, तुम्हारे स्कूल के ज़माने का दोस्त है। लिहाज साहब ने इसकी तबीयत साफ़ करनी चाहिए थी। एग्ज़ैक्टली, वो मेरा दोस्त है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा कंसर्न है, तो इसके साथ शहर को क्यों भेजा है? अब भी वो भड़कता हुआ अपनी बात पर कायम था, जबकि ज़्यादा गुस्सा तो इस बात पर था कि वो घर पहुँचने से ज़्यादा गुस्सा तो इस बात पर था कि वो घर पहुँचने से पहले ही रास्ते में 10 बार मोलक को गाल कुचला था। मोलक ने एक ए भी रिसीव नहीं की थी। मेरी मर्ज़ी, मैंने भेजा। मैं चाहता हूँ मोलक और वह करीब हों। मोलक
वो मोहल्लक के साथ कंफर्टेबल हो और मोहल्लक भी अच्छे से जान ले, ताकि बाद में आसानी से फैसला कर सकूं। इलियास साहब के नेक इरादे जहन के कदमों तले से ज़मीन खींच चुके थे। आप उस लड़की को इस वक्त गैर मर्दों के साथ ईजी करवा रहे हैं जो आपके बेटे के निकाह में है। फॉर गॉड सेक डैड, आप इस वक्त कोई सेंस इस बात को कोई सेंस बनता है डैड? लाइक सीरियसली, हाउ कुड यू डू दिस? जहन के अंदर आतशबाब फूटने लगा था, जबकि इसके माँ बाप का इत्मीनान काबिल दीद था। हाँ, क्योंकि वो निकाह सिर्फ नाम का है। मेरा बेटा इस सादा और बेज़रा लड़की को अपने निकाह में कबूल नहीं करता। मेरे बेटे के दिए गए वक़्त का पूरा होने के बाद वो इसे तलाक दे देगा, और इस मासूम बच्ची की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। और मुझे इसके लिए मोहलक पसंद है, क्योंकि मैंने मोहलक की आंखों में इसके लिए मोहब्बत और एहतराम और लॉयल्टी देखी है। और जब तुम्हें शहर में दिलचस्पी नहीं, तो मेहरबानी करके अपना इतना सर सर दर्द मत करो। वो जहन को लाजवाब कर गए थे कि वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाए थे, लेकिन इनके इरादे जहन के वजूद को आग में झोंक गए थे। वो पसंद करता या नहीं, साथ रखता या नहीं, तलाक देता, जो भी करता, पर वो इस वक्त तो इसके निकाह में थी। वो बगैरत नहीं था जो अपनी बीवी को यूं दूसरे लड़कों के साथ घूमने देता। दिल तो कि हर चीज़ को आग लगा दे, पर खुद पर जब्त किया लाल बुबू का चेहरा लिए वहीं बैठा रहा था। इसका बार बार घड़ी देखते पहलू बदलना और चेहरे का रंग तब्दील होता। इसके माँ बाप गौर देख रहे थे, पर लुत्फ़ होते। अब मुलाज़मा को काफ़ी का ऑर्डर दिया था। नुमान अली के मोहल्ले से आने के बाद वो अपनी मेंशन चला गया था। इस दौरान इसके लाख जुड़े बताने के बाद ज़िया साये की तरह इसके साथ रहा था कि ये बरामदे शेर का ज़िया को ये बरामदे शेर का ऑर्डर था। बरहान की पूरी तरह नज़र पर जाता था। इहान दोबारा कोई भी सुकून आवर नुकसानदेह मेडिसिन इस्तेमाल न करे। इसलिए अगली पूरी रात इहान से शेर ने जागते और तड़पते गुजारी थी, और इसके लाख चाहने के बावजूद इसे कोई सुकून आवर मेडिसिन भी नहीं मिल पाई थी। वो अगले दिन ही बरामदे शेर को फ़ोन खड़का चुका था कि वो आयो इसकी बात सुने। ज़िया और इसे ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी लेकर गया था। वो वहाँ से भी यूं भाग कर आया था जैसे यूनिवर्सिटी से काट खाएगी। घर वापस आया तो पता चला कि बरामदे शेर मेंशन में मौजूद है। हरीम और नुमान अली कहाँ हैं? वो सीधा बरहान की मौजूदगी महसूस करते झटके से स्टडी का दरवाज़ा खोलते हुए बरहान के सामने खस्ता हाल खड़ा था। क्या मुझे अब मुलाज़मीन की खैर खबर रखने की ज़रूरत है? एहान शेर के एहान से हटाएंगे और मुझसे मुलाज़मीन की खबरगिरी करेंगे। तेज़ सा तंज था। बरहान इसे एहसास दिलाना चाहता था कि कैसे इसको स्पेशल महसूस करवा कर नौकर की किरदार करके इस लड़की की इज़्ज़त नफ्स पर वार किया है। आप बात को घुमा नहीं सकते। मुझे जवाब चाहिए। रीम नुमान अली कहाँ है? टेबल पर हाथ मारते हुए गुर्राया था। बरहान ने नागवारे से इसका ये अंदाज़ देखा, फिर अपनी जगह से खड़ा होता इहान के मुकाबले आया था। मैंने तुम्हें कहा था इहान, वो चाहिए तो उसे हासिल कर लो, और अब अगर ये सारा किस्सा तुमने ख़त्म कर दिया है तो तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़ गए हो? भूल जाओ उसे। बरहान ने सर्द लहजे में कहते मुकाबले के चेहरे के उतार चढ़ाओ मलाजा किए थे। मैं उसे भूल जाऊंगा तो ये भूल है आपकी और इसकी भी। इसे क्या लगता है मुझे मेहरू की तरह यूँ छोड़ के चली जाकर मैं इसे जाने दूंगा? मैं अब 8 या 10 साल का बच्चा नहीं हूँ, और ना वो मेहरू है। मैं इसे उधेड़ के रख दूंगा या इसे जान से मार डालूंगा। भला के बच्ची का था। बरामदे शेर ने गहरी सांस अपने अंदर खींची कि मेहरू के नाम का नसूर इनकी ज़िंदगियों से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता था, और यही इसके भाई की बर्बादी की वजह भी था। इहान, आखिर तुम चाहते क्या हो? बरामदे शेर ने सर्द अंदाज में झुंझला कर पूछा था। वो कहाँ है? मैं फिलवक़्त इससे मिलना चाहता हूँ। अपने कुछ सवालात के जवाब चाहिए मुझे उससे। इहान की आंखें कहते हुए तासुर थी, मगर लो देता लहजा इसके अंदर के सुलगते भांपड़ का पता दे रहा था। भूल जाओ उसे और मुझे बताओ, तुम एंटी डिप्रेशन पिल कब से ले रहे हो, और किसने तुम्हें मेडिसिन मुहैया की है? आस्तीन के कब फोल्ड कर दे? बरहान ने सादा लहजे में दरियाफ़त किया था। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। इहान ने दांत पीसे थे। फिर मैं भी तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। बरहान का इत्मीनान काबिल था। ओके फ़ाइन, आप समझते हैं इस तरह आप उसे मुझसे बचा लेंगे तो आप गलत हैं। मैं उसे ढूँढ निकालूंगा, और फिर उसे मेरे कहर और गज़ब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। आप भी नहीं। नफ़रत से कहता वहाँ से वाक़ आउट कर गया था। बरहान ने कुछ पल खाली जगह को घूरा, फिर सर झुकाते अपना कोट उठाते खुद भी बाहर निकल गया था। यहाँ रहकर वह इहान को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इहान को कंट्रोल करने के लिए इसे अलिफ़ की ज़रूरत थी। वो सारे रास्ते ड्राइविंग में यही सोचता रहा था कि वह अलिफ़ को किस तरह राज़ी करे। सफ़र तवील था, पर बरहान को बहुत मुख्तसर लगा था। अपनी मेंशन के अंदर दाखिल होते साफ़ सुथरी रोश पर गाड़ी के पहिए चढ़ाए थे। दिलशेर मेंशन के लाउंज में दाखिल होते ही इसकी नज़र नियाना पर पड़ी थी, जो टेलीफोन हाथ में पकड़े मुस्कुरा कर फ़ोन पर बात कर रही थी। बरहान को देखते ही इसने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया था। बरहान ने इससे कोई सवाल नहीं पूछा था।
बस बहुत बारीकी से इस घबराना घबराना देखा था। आप सारी रात कहाँ थे? अपनी घबराहट पर काबू पाते ही नारा सवाल करती। इसके मुकाबला यदि काम से बढ़ गया था, तुम किससे बात कर रही थी? बरहान के सवाल पर इसका चेहरा पल भर को तरीक पड़ा था। बरहान इसे सर्द नजरों से देख रहा था। जब अचानक किनारे इसका हाथ पकड़ कर इसे कमरे में ले आए थे। बरहान को बेड पर बिठाते खुद इसके पास घुटनों के बल बैठते अपने दोनों हाथ बरहान की गोद में रख दिए थे। बरहान खामोश रहा था, पर इनियारा कश्मकश में थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बरहान, लेकिन मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। आप मुझ पर प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। इसका अंदाज़ बलागा हसीन था कि बरहान के होंठ गहरा मुस्कुराते। ये लड़की मासूम थी, न जाने किन-किन तरीकों से बरहान की हवासों पर हावी होती थी। बरहान ने बाजू से थामते इसे ऊँचा किया था और इसे अपनी थाई पर बिठाया था। बरहान की इस हरकत पर इनार के गाल दबने लगे थे। वो घबराहट का शिकार हुई थी, वो जो इसके जवाब की मुंतज़िर थी, अपनी ही बात भूल गई थी। नहीं करूँगा गुस्सा मेरे रेड रैबिट, बताओ क्या बात है? बरहान के पूछने पर इनारा कुछ पल बरहान की शर्ट के बटनों से खेलती रही, फिर गहरी सांस ली थी। मैं जुर्मान से बात कर रही थी। इनार की साफ गोई पर वो मुतासर हुआ था, लेकिन जुर्मान का नाम सुनकर माथे पर बल पड़े थे। आपने कहा था आप गुस्सा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इनारा का कहना था, और बड़े नामहसूस अंदाज में इनारा ने अपना दोनों हाथ की उंगलियों से इसके माथे पर बड़े बल खोलने चाहे थे कि बरहान ने सीधा हाथ मुंह पर फेरा, फिर इस बात में सर हिला दिया। इसकी इस बचकाना हरकत पर दिल में मुस्कुराया था। इसकी उनकी आपसे लड़ाई हुई थी। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उनसे मिलना चाहते मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं कभी वापस इस कोरे पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं जुर्मान से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती। वो खाला की बेटी है और इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। आपके पास भी तो मुझे उसी ने भेजा था ना? वो नज़र झुकाए कह रही थी, लेकिन बरहान की तरफ से कोई जवाब न पाते नज़र उठाए तो बरहान की आंखें खाली और चेहरे के तासरात सर्द लगे थे। अब वो इसे क्या बताता कि 2 करोड़ की एवज़ कमज़ोर और बुज़दिल इनियारा को सौदा किया गया था इस बगैर औरत ने। लेकिन मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं जुर्मान से बात नहीं करूँगी, ना कभी मिलने का कहूँगी, लेकिन अगर आप बात करने की इजाज़त दें तो मुझे खुशी होगी। अचानक बरहान का हाथ थाम कर वो मान से बोली थी। बरहान ने अपना हाथ इसके हाथ में देखा तो फ़ौरन मुस्कुराहट होंठों पर नमूदार हुई थी। वो आम लड़कियों की तरह ज़िद नहीं कर रही थी और दरमी नहीं दिखा रही थी, बल्कि इसने सबसे ऊपर बरहान को रखा था। सबसे ज़्यादा फ़ोक़त बरहान को दी थी। अब जब इतना मान बरहान को दिया था तो थोड़ा मान बरहान ही से तलब कर रही थी। तो भला वो कैसे इसका मान तोड़ सकता था? ठीक है, तुम जुर्मान से बात कर लेना, लेकिन जुर्मान पर कतईयन ये इज़हार मत करना कि मेरी इजाज़त से हो रहा है, वरना इसके लिए यहाँ आने के रास्ते हमवार होंगे, और मैं ये नहीं चाहता। बरहान की बात इस कदर काबिल खुशी थी कि सारी शर्म या बोले वो खुशी से उसके सीने में समा गई थी। आप बहुत अच्छे हैं, जलवारी पक्का वादा, मैं नहीं बताऊँगी जुर्मान को कुछ भी ना मिलूँगी, सिर्फ़ बात करूँगी। बरहान के गाल को ज़ोर से हाथों में खींचते वो बच्चों की तरह बोली थी, अच्छा जाओ, मेरे लिए अच्छी-सी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। इसे अभी अलिफ़ से मिलना था। वो नहीं चाहता था कि वो इसकी इन मासूम हरकतों पर बहकर इसे खुद में उलझाकर अभी पागल कर दे, इसलिए फ़ौरन से वहाँ से बाहर भेजा था। बरहान के कहने पर वो फ़ौरन बाहर की जानिब आ गई थी। बरहान ने अपनी बड़ी हुई शेव सहलाते इनारा का लहराता आँचल देखा था। होंठों पर मुस्कुराहट रखता थी। वो भला कैसे अनजान रह सकता था अपने रैबिट से? कल जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी, इसके बाद बरहान ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी थी। वो इनियारा और जुर्मान की गुफ्तगू को बखूबी सुन रहा था, जिसे सुनकर इसका दिल किया वो जुर्मान को ज़िंदा ज़मीन में दफ़न कर दे। वो जो कहानी इससे ज़ावियार से मालूम हुई थी, इसी की मुकम्मल तहकीक भी बरहान कुछ देर पहले कर चुका था। पर इसे इनियारा को किसी चीज़ से गवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो मासूम सी परिवश इसके वजूद में इतनी उलझ जाए कि इसके बाद इसकी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी ना रहे। पर जुर्मान को सुकून नहीं था। वो शायद खुद अपनी दर्दनाक मौत चाहती थी। कल जब इनियारा ने इसे झूठ कहा था, इससे पहली बार इनियारा पर गुस्सा आया था, पर वो नज़रअंदाज कर गया था, और आज इनियारा का हसीन अंदाज इसके दिल को हर कोने को किसी गुलाब की तरह खिला गया था। अब इसका काम आसान था। वो जुर्मान को ही जाल में वो जुर्मान के जाल में उलझाकर अनकरीब ऐसे मार देने वाला था कि जुर्मान को सांस लेने की मोहलत न मिलती। इनारा के किचन में जाने के बाद वो एलिफ के कमरे में आया था। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो एलिफ को खिड़की के पास खड़े पाया था। आ जाए अंदर। एलिफ की ठहरी हुई आवाज़ पर लबीज था। वो कदम कदम चलता एलिफ के बराबर खड़ा हुआ था। मैंने कई शामें ऐसे इंतज़ार में गुजारी थी, बेआसरा और लावारिस। वो तंज़ नहीं कर रही थी, सिर्फ बता रही थी, मैं तुमसे मिलने आता था पर तुम मिलती नहीं थी। बरहान ने वजाहत देनी चाहिए थी, पर वो जानता था इसके दिल खोखली है। हाँ, फिर आपने ये कसूर भी मुझ पर डालते, फातिहा की मिट्टी भी डाल दी। वो गरब से हंसी थी। एलिफ, मैं कभी तुमसे बेखबर नहीं रहा था। फरहान बोल रहा था जब वो दरमियान में चीखी थी, खुदा के लिए अब आपको समझ नहीं आ रही, दौलत मोहब्बत रिश्तों की कमी पूरी नहीं कर सकती। मेरे बैंक में करोड़ों जमा करवाए, पर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, आपकी ज़रूरत थी। सर पर हाथ मारती वो बेड पर जा बैठती। फरहान मुजरिम की तरह खड़ा उसे देख रहा था। एलिफ, मैं ऐसा क्या करूँगा तुम्हें? हाँ, तुम और रेहान मुझे माफ़ कर दो, मैं थक गया हूँ दुनिया से, खुद से, और तुम लोगों के
تم لوگوں سے لڑ لڑ کر میری سانسیں مجھ پر تنگ ہو رہی ہیں، یا تو تم لوگ مجھے سزا دے دو یا معاف کر دو، سب برداشت کر سکتا ہوں یار، پر تم لوگوں کی نفرت نہیں ہے بس اسے کہتے ہوئے ایلف کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا، اس کی گود میں دھرے ہاتھ عقیدت سے تھام گیا تھا۔ ایلف نم نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی، وہ جھکے کندھوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ معاف کر دیا آپ کو، ایلف نے مسکراتے فراغ دلی سے کہا تھا، بے شک وہ ساتھ نہیں تھا پر پھر بھی ہر لمحے اس کے ساتھ تھا۔